So, welcome everyone to another podcast of Discussion with Darshan. Today we have Devansh with us, who is a second generation entrepreneur into the gold and jewelry business. So, Devansh, thank you so much for coming on the podcast. Today it becomes discussion with Devansh. Discussion with Devansh, D Square. Yeah, so thanks for getting me on. And we have done a couple of work together with Yes. TKC and the company, so the collaboration of marketing is there. And glad to be here and share the journey of our company and myself with Yes. the audience who are looking. Done. So, Devansh, you just start off with, since when did you start getting into the jewelry business? Like, where did that journey start from? So for me personally, after my college, I didn't get into the business directly. But while growing up, obviously as we were jewelry business, since I was 7, 8 years old, 10, 12 years old, we used to go to the shop every Dhanteras, Diwali or any time we had holidays. We used to spend our evening. मतलब दुकान पे जाके बेचते थे, करते थे, कैलकुलेशन कैसे करना है समझते थे, कस्टमर से बात कैसे करना है वो हम लोग समझ के वी कुड डील एंड क्लोज कस्टमर्स. एंड टुडेज डेट आई कांट बिलीव दैट जब मैं मेरे ब्रदर मेरे चाचा सब लोग थे 7 से 12 साल के, हम लोग कस्टमर से अकेला डील करके पैसे लेके चेंज देके क्लोज करते थे लाइक हमारे चांदी के दुकान के अंदर. एंड टुडेज डेट इज वेरी डिफरेंट. लाइक हम लोग बच्चों को रोड क्रॉस करना अलाउ नहीं करते, सो विच इज द क्रेजी थिंग. तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर था ऑन सेल्स कैसे करते हैं एंड हाउ वी कैन डू सेल्स. एंड देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन. एंड मेरा स्टडीज था सिंगापुर में, सो while studying I did internships. I did internships in a VC firm, then I did internship even in a cycle shop क्योंकि I wanted to buy a very expensive cycle. So for that, after coming back to India, I did a course in digital marketing and then I started my own marketing company जिसमें हम लोग दूसरे जो businesses है उनको help करते थे to have a website, to have creatives, to have a presence online and what they can share. And that time रील्स और ये सब का ज़माना नहीं था. दिस वॉज बैक इन 2017 2018. तो ओनली स्टैटिक पोस्ट वॉज द ट्रेंड. रील्स स्टार्टेड वेरी रिसेंटली. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड आई टुक ऑन माई ओन बिजनेस एज अ क्लाइंट. तो एज आई टुक ऑन माई ओन बिजनेस एज अ क्लाइंट, मैं जितना मार्केटिंग एफर्ट डाल रहा था, आई गॉट द करेज टू हायर अ फ्यू एम्प्लॉयज. आई हायर्ड अ वेब डेवलपर एंड अ ग्राफिक डिजाइनर. और फिर हमारा जितना भी आउटपुट का मेरे को रिजल्ट मिल रहा था, मेरे को मेरे बिजनेस में ज़्यादा दिख रहा था. सो आफ्टर 1 year वी कम्प्लीटली मर्ज माई कंपनी विद पन्ना ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव, जहाँ पे फिर जो भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं हम इनका ही कर रहे हैं वाइल कीपिंग द अदर क्लाइंट्स ऑल्सो. बट ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स इट्स बीन लाइक 7-8 years, ऑल द अदर क्लाइंट्स आर नाउ क्लोज टू जीरो. Like the only people we are working for is my company, which is Panna Jewelers Exclusive, and that's how it started. And while doing that also, I would say digital marketing ka I think आज concern तो रहेगा, which I feel is one of the biggest things. And other than Panna Jewelers Exclusive, I also started like a hydroponics farm which was running for 3 years, where we were supplying all microgreens across like Hyderabad. बस एक 2000 square foot के जगह से we were producing almost 150 kgs a month of vegetables, lettuce, microgreens and everything. And उसके अलावा I've also invested in a few startups that have come on Shark Tank and everything else as an angel investor. So journey is wide and big. I'll let you take the story forward. Yeah. Crazy. I didn't know that you did all these things. So, but currently now you're full time into Panna Jewelers Exclusive in terms of like a business stand. See, full time I'm into living life with passion. In that a very big part comes of leading the company. And then company के अलावा, see how you say this content creation and everything, that's also passion. So no matter what business or what sphere, the passion is on marketing and living the life fully. And Panna Jewelers Exclusive right now we're working more क्योंकि there is a lot of scope of expansion and we see the results so fast. तो उसके अंदर I'm putting most of my effort there. At least like 3-4 days a week I'm at the office and at the store. Yeah. Okay, so you always had passion for creating content. You did your own company also, but to do a jewelry business marketing, like when did you actually get to know in depth and detail about all the things? So first initially I wanted to become a YouTuber like most of the Indian audience here. I wanted to become a YouTuber back in 2015. So while my college मैं vlogs बना रहा था, whatever I do. Like there was a push-up challenge in my college. हम लोग उसका vlog बनाया, हम लोग फिर घूमने जाते थे उसका vlog बनाया. And then few vlogs started becoming viral at the sense कि 5 से 10 हज़ार views आ रहे थे. This was pre-Jio, pre-everything. So 5 to 10,000 views was good at that time for every video. And I was putting video only like once in 3 months. And then उसके अंदर output was not there, but the validation was coming कि world needs content and they need different content. And I used to go on treks. तो हम लोग ट्रैक का वीडियो बना के पोस्ट करते थे एंड उसमें मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ. देन आई न्यू वन थिंग दैट इफ यू कैन गेट इनफ आईबॉल्स एंड यू कैन सेल एनीथिंग. बट नाउ द डिफरेंट थिंग इज गेटिंग द आईबॉल्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अभी ज्वेलरी में हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, फेसबुक पेज स्टार्ट किए थे एंड देन वी स्टार्टेड फॉर माई इंस्टाग्राम पेज.
Instagram पेज पे फर्स्ट वीकली एक पोस्ट कर रहे थे. दिस वाज 5 years बैक. देन वी मेड इट डेली वन पोस्ट फॉर द लास्ट 3 years एंड दैट्स हाउ हमारा चैनल का ग्रोथ हुआ. लाइक फ्रॉम 10,000 followers right now we have I think 42 or 43,000 followers, and then just last month we started doing 2 posts a day. So like more frequency you add, 100% the more eyeballs are getting and the more people are sharing. Like people I feel हम लोग सोचते हैं कि यार ज़्यादा नहीं डालना चाहिए या सेम चीज़ बार बार नहीं डालना चाहिए, विच इज़ वन बिग मिसकंसेप्शन. अभी अगर हमारा कुछ एक वे ऑफ डूइंग अ रील वर्क्स, you can make the same way of doing the reel or product reel again and again with every product and same product also in different ways. अगर समझो कि जैसे ज्वेलरी में there is different types of shooting. One is you can put it on a neck and shoot the product. One is आपने आपके हाथ के ऊपर ज्वेलरी रख के डाले हो, एक आप मॉडल के ऊपर रख के डाले हो, and one more is just on a flat surface on a tray. So if the jewelry is selling a lot for you और इंक्वायरी ज़्यादा आ रहा है, आप उसका चारों भी तरीका में शूट करके डाल सकते हो ऑन योर पेज. प्रॉब्ली नॉट इन अ मंथ बट इन अ स्पैन ऑफ 3 months. अगर आप 2 पोस्ट एवरीडे डाल रहे हो, सो यू कैन पुट दैट प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ताकि उसके इंक्वायरीज भी ज़्यादा है एंड द कस्टमर कम्स टू योर स्टोर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हमारे तो ज्वेलरी में वी आर मेनली लर्निंग फ्रॉम द कंज्यूमर एंड इवन यू नो द एम्प्लॉयज़. वो लोग बोलते सजेशन कि सर आज ये कस्टमर आया था हमारा, वो पोस्ट देकर आया. तो वी ऑल्सो टेल आर यू नो एम्प्लॉयज़ कि कस्टमर से बात करो, व्हाट आर दे लुकिंग एंड हाउ आर दे कमिंग टू आवर स्टोर. Are they, you know, listening to us on the radio? Are they listening to, are they seeing an ad on Instagram? Are they seeing an ad on YouTube? Or are they seeing a newspaper ad and coming? But usually how is it, like what, in a, like let's say traditional jewelry store and let's say Panna Jewelers or other shops which you're exploring, what percentage of people are known relatives aate hain, and like after doing this marketing, like what is the percentage of people who are coming via online or social media? तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, I don't know the data for other stores, but my store I can tell. So we have proper metrics in which if you remove the percentage, right, from social media, there'll be 30 to 40% of the walk-ins who have interacted with us on social media and who come, and then there'll be 20 to 30% who have interacted on WhatsApp. I'm creating WhatsApp as a different channel क्योंकि उसमें chat वगैरह होता है. Social media just look and come. But again they come to WhatsApp, like how they get your number again through some social media platform, references, social media or anything, and then 30% is still references. Okay. Which is your you know clients जो किसी और को बोलता है, word of mouth is what we and call what it. has a better conversion, मतलब online का convert ज़्यादा होता है कि known references No, का 100% references has a higher conversion because in any businesses, I believe, अभी समझो कि I am used TKC services as a digital marketing thing. अभी अगर आप जाके digital marketing से लाओगे, so then आप negotiate करोगे कि यार ये price बराबर है क्या, services बराबर है क्या, it will take a long time. Out of 10 people, probably 1 will convert. But if you ask me references of businesses who can use your service or product, almost every reference, मतलब उनका wallet size and their requirements are similar to mine, so they'll be able to buy. So word of mouth conversion, if they come in, almost 80% they will buy. Social media का जो आता है, it's a hit and miss. 60% buy, 40% are normally non-purchase. But I think compared to people who are not doing anything social media, like at least you have वो एक people walking in 10-15 your order door. extra rotate हो रहा है inventory, तो it's 100%. Like see, we are getting multiple orders, and also not just that. We have started selling online completely. So this was the thing. Me and my brother Shashank, COVID के time, we were just sitting and we were like, यार people are still doing business or something like that. We are sitting like 2-3 months nothing to do. 1-2 महीने वो सुबह 6 बजे जाके बस 1 घंटा के लिए काम करो, and then that's when we decided कि we need to launch a website, and that's where the journey started for the website. This was 5 years ago, and now after 5 years, this is the 5th year we are running. We have delivered like every day we have like 5-6 orders that go across India, and that is purely online and social media. तो इसमें स्टोर का कन्वर्जन की बात ही नहीं है ना. सो दीज आर कस्टमर्स आर सिटिंग एनीवेयर, इट कैन बी विजयवाड़ा, दिल्ली, सूरत, जयपुर, एंड दे आर सीइंग आवर वेबसाइट और कॉलिंग अस एंड दे आर ऑर्डरिंग एंड द शिपिंग इज बीइंग डन. Can you just explain to the viewers how does this online purchasing work? सिर्फ ऑनलाइन देख के खरीद लेते हैं लोग कि कैसे? No, so see for the jewelry world there is 2 ways. Online sale जो होता है is something like a Carrot Lane or a Mia, where they have products in the range of 20 to 30,000 or 30,000 and below, जहाँ पे वो लोग बस पिक्चर देख के परचेज करेंगे, खत्म. बट इन द हायर रेंज, लाइक आर एवरेज टिकट इज अराउंड 1 लाख. तो फिर वो जब टिकट साइज होता है ना आपका, उसके अंदर द कस्टमर हैज टू हैव असिस्टेड सेलिंग, विच मीन्स दे आइदर वीडियो कॉल, दे आइदर टेक्स्ट, एंड यू नीड टू रिप्लाई टू देम प्रोएक्टिवली टू मेक द सेल हैपन. तो विच इज स्टिल ऑनलाइन सेलिंग बट इट्स असिस्टेड सेलिंग. तो इसका वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन how many agents you have chatting with them and how many agents you have converting. So basically they will reach out to you, फिर आप वीडियो कॉल करके उनको ज्वेलरी दिखाओगे, whatever they want to see. Yes. And people trust and buy. Yeah, they'll trust and they'll buy because your branding is there. And इसमें भी the whole ecosystem of marketing matters. जैसे you can't just have a strong Instagram or a strong Facebook. You also need to have a very strong website and a very good Google Maps.
like most of the customers, they'll go to your Google Maps, they would want to check the reviews, and then just to gain trust, हम लोग हमारे customers को बोलते हैं कि, and Google Maps reviews is also a very big factor of walk-ins. So we get at least 2-3 walk-ins like in a day who see the maps reviews बोल के आपका स्टोर का रेटिंग इतने सारे नंबर और इतने हाई है, like how आप भी रेस्टोरेंट या कुछ भी देखते हो कि यार 1000 रेटिंग्स है, 5 स्टार दिया है तो दिस इज गुड, लाइक 5 स्टार होता नहीं, 4.9 4.5 व्हाटएवर. तो हमारा भी इफ यू गो टू आवर पेज देयर बी आई थिंक 3100 reviews, 4.9 star is the average rating. So then that gains trust of any customer who will come and who is shopping online also. We tell our people कि उनको बोलो सर आप जाके हमारा पेज देख लो, इंस्टाग्राम पेज देख लो, सब देख लो, कंटेंट तो भरा हुआ है, वी शो आवर स्टोर, इवन आवर एम्प्लॉइज आर मेकिंग कंटेंट, एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट, तो ट्रस्ट इज गेन देयर. आप बस अगर वेबसाइट बनाओगे, आइटम डालोगे तो आई डोंट थिंक सो सेल्स विल हैपन. यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, एंड like how Tanishq has built trust over like 30 years spending so much in marketing. Today's date, small businesses like us, we can gain trust just by talking to you directly. Like today's day, you go on my channel, you'll have everyone. Like my dad will be speaking once in a month on a channel, my brother will be making reels, I'll be making content once a week, then my employees are making content every day who are sharing with you directly. And we are transparently dealing and honestly dealing, and the honesty is shown and the trust is gained that way. So you're saying कि if anyone who's starting new, ऐसा नहीं है कि समझो कितना तो भी एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, सोशल मीडिया बना दिया, ऑनलाइन बेचेंगे करके, doesn't work that way. You need to build an entire ecosystem. I would say social media पे you should not invest anything only. Free में बहुत होता है. Like you don't need to do marketing. I feel consistency. You just keep posting every day. Organically you can grow. You don't need to boost marketing or stuff. There are big companies. I know my friends and many people in the peers who have tried to make website में इतना spend कर दिया and everything. तो मैं जो बोल रहा हूँ 5 years से मेरा website था. This year again we are making a new website. From 5 years we are upgrading our website every year. कभी भी it's not like a perfect website you make and that's the end of it. अभी हमारा new website launch होने वाला है probably in like 10 days where it's a much better version of the previous website we have. अगर आप best website version के लिए जाओगे, if you put lakhs into a website, it won't work. You need to make your business up to the website standard and everything upgrades slowly. So it's a journey. Understood. It cannot be done in once. Understood. Now there are so many jewelers. जैसे हर सिटी में if you go कोई तो एक रहेंगे 3 4 5 10 की, हाँ भाई ये ट्रस्टेड है. उसके अलावा इतने सारे छोटे स्टोर्स रहेंगे ज्वेलरी के. Is there so much really demand कि मतलब how do all these stores run? So first of all, जो numbers जो आते हैं ना, there is actually not many jewelry stores. If you get down to numbers, no, there is hardly 80,000 retail stores in all of India, which is jewelry. And this is वो जो 1% store से लेकर corporate store, I'm talking about all of them. तो अभी जैसे हम लोग like a place like General Bazaar and Port Market, Secunderabad, where from I am. So there is almost 600 shops in that small area, which is small. So like in every city, in Hyderabad only there is almost 5-10 different markets like this. तो उधर ही आपके 1000-2000 ज्वेलर हो जाते हैं. डिमांड तो है, तो ज्वेलरी ऑल्सो वर्क्स वेयर वी ऑल्सो बाई फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स, वी ऑल्सो बाई फ्रॉम स्मॉल शॉप्स टू सेल टू आवर कस्टमर्स हु आर रिटेल क्लाइंट्स, and then there is many retail. So demand, I feel it's there and it's increasing much more. Can you just explain, मतलब ये demand में भी if you have identified like what is the primary reason people buy jewelry, and also उसमें deep में जाके like जैसा मतलब I've heard my friends say कि अरे तेलुगु कस्टमर ना अच्छा रहता, मतलब who in that also as a regional wise people buy jewelry अलग से कि कैसे, मतलब what is your customer segment? I totally say it's not regional wise, it is where the GDP and wealth, जहाँ पे पैसा ज़्यादा बन रहा है उधर ज्वेलरी ज़्यादा खरीदी जाएगी. Like example, if you are comparing like say Hyderabad or a Bangalore and a Bombay, इधर ज्वेलरी हब्स इतना बड़ा है क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इधर अर्न कर रहे हैं. लाइक सी एवरीवन इज गेटिंग गुड जॉब्स, गुड बिजनेसेस एंड एवरीथिंग. तो अभी जब उनका ओकेशन होता है, इट कैन बी अ हाउस वार्मिंग, बेबी सेरेमनी, देन हाफ सारी भी इधर फंक्शन होता है, एंड देन फिर अपना बहुत सारे जिसमें रीजन होते हैं, जैसे नॉर्मल गेट टुगेदर्स के लिए भी शॉपिंग शुरू हो गया. एंड देन इफ यू डोंट रियलाइज वर्ल्ड में बिफोर देयर वाज जस्ट फ्यू बिग ओकेजन इन पीपल्स लाइफ. वो था वेडिंग या नया घर बनाया. आजकल एवरी ईयर देयर इज सो मेनी ओकेजन दैट पीपल हैव. देयर इज अ 5th एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, देन देयर बी लाइक जस्ट अ दिवाली पार्टी एंड देन अ होली पार्टी. लाइक देयर इज सो मेनी ओकेजन दैट पीपल आर हैविंग टू ड्रेस अप. देयर इज सो मेनी गेट टुगेदर्स. अभी आप कम्युनिटीज में भी ले लो, कम्युनिटीज हैविंग अ इवेंट once a year, once a quarter, and people are part of so many communities. So the need for jewelry is when you're going in a society or going anywhere, let it be a man or a woman. जैसे अगर आप रिंग पहनते हो, वॉच पहनते हो, a man feels confident. But are people buying jewelry for fashion or are people buying jewelry for investment? How is it? There in this also both. See, there are people buying jewelry for investment. There are people buying jewelry for fashion. But what do you see the trend is primary or where is it going towards? I would say most of the buying is on requirement. अभी देखो फंक्शन है, पहनना है आपको,
नया पीस लेना है और एनीथिंग, इफ यू हैव अ वेडिंग कमिंग अप, सो द बिगेस्ट टिल नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज weddings and I would say occasions जहाँ पे you have a gathering to go to and you are like आपको आपका पीस नहीं पहनना है. एंड देन ऑल्सो द बिग फैक्टर इन द इंडियन ज्वेलरी मार्केट इज इतने सालों से हम लोग को मार्केट किया गया है कि येलो गोल्ड येलो गोल्ड येलो गोल्ड, लाइक एज इन आई वुड से इन आवर स्टोर एंड मार्केटिंग ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. People shouldn't buy jewelry as an investment. That is my thing. But at the same time, with the gold rates increasing, people try to think कि अभी मैंने अगर 15-20% वेस्टेज भी दे दिया तो मेरा अगर 15-20% गोल्ड बढ़ गया तो ज्वेलरी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 or 2 years, डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट्स इंक्रीजिंग. जैसे हिस्टोरिकली द एवरेज ऑफ गोल्ड रेट इंक्रीजिंग इज 4% इन डॉलर टर्म्स, इन रुपी टर्म्स इज 9%. तो अगर आप 9% वेस्टेज देते हो विद इन 1 year आपका ज्वेलरी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट. बट अगर आप ज्वेलरी खरीदने का एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ ज्वेलर आई वुड से कि इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड जस्ट बाय प्योर गोल्ड. एंड मेनी बिजनेसमैन मेनी लेडीज दे बाय इट एज प्योर गोल्ड, और जब जरूरत है वो लोग गोल्ड दे के कर लेते. Jewelry, you should only buy things that you want to wear and you feel that will be fashionable and which is trendy. You should not mix the two. अब आप investment and if you try to add on more and more purposes, it won't serve any purpose. You're saying basically be clear. अगर investment के हिसाब से लेना है तो gold ले लो, और अगर आपको jewelry लेना है तो जो पहनने के लिए jewelry ले लो. क्योंकि आप ज्वेलर को पूरा प्रॉफिट दे दोगे, मोती हीरा सबका पैसा दे दोगे, फिर लॉकर में रखोगे and you never wear it, it is wasted money. And many times it happens. अभी आप वेस्टेज या if you see so many things and then when you wear it you don't like a particular piece. क्योंकि हम लोग के पास आते हैं, there are customers who come with so many necklaces. अभी जैसे this month we are having a old gold exchange, like gold exchange मेला, जहाँ पे customers are getting their old items which they haven't used and 10-10 12-12 साल से उनके लॉकर में आइटम है which they have not even worn even once. तो what is the point of buying it? And then वो जो मार्केटिंग किया जाता है येलो गोल्ड और एनीथिंग जस्ट बाय प्लेन गोल्ड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ लॉस नहीं रहेगा, बट अगर आप पहनोगे नहीं तो वो ज्वेलरी भी नहीं रहेगा. मतलब जो पे किया 9% या 8% वो भी ज्यादा ही पे किया ना, गोल्ड लेते तो उतना भी नहीं लगता. If you're not wearing it, there is no yeah, is no use. अभी लोग ये वेस्टेज बोलते हैं, बट प्रॉब्ली कभी समझ ही नहीं आया मेरे को कि एग्जैक्टली क्या है ये वेस्टेज. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. उसमें फॉर इसकी आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देखना. सो वेस्टेज इज बेसिकली मेकिंग एंड वेस्टेज इज सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन मेकिंग एंड वेस्टेज. जैसे थोड़े सिटीज है, थोड़े शॉप्स में मेकिंग बोलते हैं, थोड़े सिटीज. बट इफ यू कुड एक्सप्लेन कि समझो लेट्स से ये गोल्ड का बार है, गिव इट टू यू, मतलब वेस्टेज क्या है एग्जैक्टली, मतलब इन द ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस क्या रहता है वेस्टेज. प्योर गोल्ड का कभी बनता नहीं है ज्वेलरी. इट इज उसके ऊपर तांबा चांदी वो सब ऐड करके या तो 91.6% किया जाता है या तो 75%, एंड देन दैट इज मेड. देन दैट गोल्ड इज, इफ आई टेल अ एग्जांपल ऑफ अ टेंपल ज्वेलरी नेकलेस, देन द गोल्ड का जो होता है पहले घाट बनता है, घाट का एक कारीगर काम करता है, फिर घाट के बाद जो खुदाई होता है, चिलाई होता है, लाइक विच इज द कंप्लीट हैंडवर्क, हैमर नेल वगैरह से नक्शी पूरा मारते हैं, एंड देन कुंदन का काम हाथ से, स्टोन सेटिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज हैपनिंग. तो इन दिस प्रोसेस देयर इज 6 to 7 कारीगर्स इन्वॉल्व्ड. और फिर ये जो कारीगर्स इन्वॉल्व होते हैं, एवरीवन हैज अ चार्ज एंड एवरीवन इज पेड अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ गोल्ड दे आर वर्किंग ऑन. तो अभी समझो जैसे घाट वाला रहता है, घाट वाले ही चार्ज लाइक 1 to 2% वेस्टेज. देन द स्टोन सेटिंग वाला ही विल चार्ज आइदर पर स्टोन और आइदर हाउ मच वेट ऑफ द ऑर्नामेंट, ही विल चार्ज 1 to 2%. तो वैसे ही दैट्स व्हाई द मोर इंटीग्रेट और द मोर वर्क इज एन ऑर्नामेंट, उसमें वेस्टेज ऐड होता है बिकॉज ऑल द कारीगर्स हैव टू पे, एंड देन द मैन्युफैक्चरर विल चार्ज यू 1 to 2% मोर ऑन दैट, एंड देन इन द एंड after the retailer adds his margin, then the customer ends up paying anywhere from between 12 to 24%, depends on which store and what ornament you are buying. और इसीलिए जैसे चेन्स और बैंगल्स होता है, चेन्स एंड बैंगल्स में कारीगरी ज़्यादा नहीं लगती है, सोना रहता है, आप मशीन में डालो वो चेन्स उससे निकलते रहते हैं, बट सिर्फ उसमें भी हैंडवर्क लगता है, जहाँ पे कटिंग और एंड में जो आपका हुक और क्लिप लगता है वो हाथ से लगा जाता है, एंड देन एंड में जो पॉलिशिंग और बफिंग होता है दैट्स स्टिल हैंडवर्क. बट कंपेरेटिवली टू अ नेकलेस द हैंडवर्क इज वेरी लेस इन अ चेन एंड बैंगल. इसीलिए प्लेन आइटम्स जो मशीन में होती है उसकी वेस्टेज थोड़ी कम रहती है, बट वेट ज़्यादा रहता है. हैंडमेड आइटम्स नॉर्मली आर लेसर इन वेट, वेस्टेज इज मोर, एंड वेस्टेज इज जस्ट बेसिकली आई टेल यू द मार्जिन दैट यू आर पेइंग टू द कारीगर्स हु हैव वर्कड ऑन योर ऑर्नामेंट, द होलसेलर, द मैन्युफैक्चरर, द रिटेलर. तो मेरे को क्या लगता था वेस्टेज मतलब अभी ज्वेलरी बना रहे होंगे प्रॉब्ली, तो थोड़ा मतलब चिजलिंग के टाइम पे वो डस्ट निकलता है, बट द डस्ट इज हार्डली 0.2%. अच्छा, तो उससे कुछ मेरे को लगा था कि वो है वेस्टेज की. मैं अगर आपको 10 ग्राम का ज्वेलरी दिया तो बनाते बनाते आप क्या करते थे, 2 ग्राम आपके मार्जिन के ऐसा साइड में रख लिए और उसको ऐसा वेस्टेज बोलते थे, बट इट्स नॉट. एक्चुअल गोल्ड साइड में कुछ भी नहीं रहता है. एक्चुअल गोल्ड वेस्टेज विल बी लाइक 0.2%, वेरी लेस इन परसेंटेज, बट इन दिस इंडस्ट्री द पेमेंट टर्म्स आर सच दैट
everyone charges the wastage to the next person, even though अभी just सोना वेस्ट नहीं हो रहा है. Exactly, मतलब आपका पूरा सोना यूज हो रहा है, जितना आप ग्राम दे रहे हो उतने ग्राम का बन रहा है, बट यू बेसिकली हैव टू पे एनीवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि अगर 10 ग्राम का इतना वैल्यू हो रहा है, सो आई विल चार्ज यू 2% एज माय फी. दैट्स हाउ पीपल चार्ज. अभी जैसे आपका ब्रोकरेज ले लो, रियल एस्टेट का, व्हाटएवर लाइक दैट, एक से एक लेवल में काम कराने का पैसा, लाइक फ्री में तो ऑब्वियसली नथिंग इज डन. एंड इवन अ गोल्ड बार जब आपका बनता है, गोल्ड बार भी इवन दो इट्स प्योर एंड उसमें मेकिंग का कुछ भी चार्ज नहीं, मतलब एक्चुअली मेकिंग का कुछ हैंडवर्क का प्रोसेस नहीं, इट्स ऑल मशीन. उस पर भी आपको 500 से 2500 रुपए का चार्ज लगता है. डिपेंड्स ऑन आर यू गेटिंग अ 999, आर यू गेटिंग अ 49. लाइक MMTC का कॉइन हैज अ मेकिंग ऑफ 2 to 5,000 रुपीज, विच इज लाइक इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट. एंड देन लोकली भी लोगे तो डाई चार्ज तो प्योर गोल्ड का भी रहता ही है, बिकॉज देयर इज सम वर्क हैपनिंग. वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, सो वैल्यू एडिशन हैज टू बी पेड. अभी इज द सेम एज आप कॉटन खरीदो और टी-शर्ट खरीदो. Understood. The difference is so much. Like gold and jewelry में भी उतना ही है, but the valuation is done very less in our industry क्योंकि it's an asset and it's so costly. But could you explain like to the audience कि you recently made a vlog also कि you know let Kammi show you, मतलब कैसे jewelry आप बनाते कैसे हो, मतलब as a big retailer you probably manufacture your own jewelry also. If let's say you buy from other people also, what is the process like? So initially what happens is we first get the drawings of what all designs have to be made. तो वो ड्राइंग आता है, ड्राइंग के हिसाब से स्टोन सिलेक्शन होता है. स्टोन सिलेक्शन आपसे फर्स्ट अ घाट इज मेड, फिर घाट के बाद उसमें स्टोन एम्बेडिंग होता है. और डिपेंड ऑन विच ज्वेलरी इट इज. मैं टेम्पल ज्वेलरी का बात कर रहा हूँ क्योंकि वी सेल टेम्पल ज्वेलरी ओनली द मोस्ट. तो उसके बाद स्टोन सेटिंग होता है, उसके बाद उसके ऊपर एंटीक पॉलिश, एंड द लास्ट स्टेप कम्स इज उसके नीचे पर्ल्स डालते हैं एंड देन पॉलिश करके कस्टमर के पास आ जाता है. बट द फर्स्ट स्टेप विल ऑब्वियसली बी ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स देख के उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है. सो ये दिस डिजाइनिंग व्हाट यूजुअली द क्लाइंट्स कम एंड टेल यू मेरे को ऐसे टाइप का चाहिए कि you also get in-house maximum designers? we only get everything made. Clients जो बोलते हैं orders is hardly 10% of the thing क्योंकि most of the people nowadays they want ready-made stuff only and what they like and how they want to do. And again, is this based on Bollywood media कि अरे इसका सेट ऐसा था, मेरे को ऐसे टाइप का सेट चाहिए कि नहीं? How do you guys even design anything? अभी देखो जैसे ever since the Ambani wedding happened, emeralds have come too much in trend क्योंकि everyone saw Neeta Ambani and everyone wearing that big emerald earrings. Most of her necklaces were only emerald, no other stones was there. तो अभी emerald became in trend because of that one big event like pre-wedding, wedding. Emeralds came back in trend in a very big way. But and also like there was a Kalipot necklace, मतलब वो क्या मंगलसूत्र, which was worn by Parijiti Chopra and Aditi Rao Hedri. It's like a solitaire and a round thing. So that became a bestseller in the entire industry. तो basically जो भी है Bollywood में whatever goes viral on the internet, people come and demand you कि मेरे को ऐसे टाइप का चाहिए, या they show you pictures कि मेरे को ऐसे टाइप का. So you also make your designs based on their order and their requirement. Correct. Okay. Understood. In this also, like you were saying, there are different types of jewelry. In that you make temple jewelry. Can you just explain कि what are the different types of jewelries that you know people make? तो बहुत ज़्यादा रहता है. देखो, there is plain jewelry, there is Bombay jewelry, there is Bombay antique, then there is Coimbatore chains, then फिर जयपुर से अपना पोलकी जड़ाऊ ज्वेलरी आ जाता है. Then temple jewelry with Nakshi work is what is Hyderabad famous for in general, because so we are actually lucky to be in a very good location which is Hyderabad, जिसमें आपको साउथ में नक्शी ज़्यादा चलता है, नॉर्थ में कुंदन एंड पोलकी और जड़ाऊ. क्या है डिफरेंस, क्या है सब चीज़ों में? मेरे को कभी समझ ही नहीं आया. बेसिकली पोलकी जड़ाऊ एंड एवरीथिंग इज वेयर वैक्स इज बीइंग यूज्ड इन द ज्वेलरी. वैक्स एज इन अ कैंडल वैक्स? हाँ, वैक्स. अच्छा. तो वो स्टोन सेटिंग एंड प्योर गोल्ड के लिए वो वैक्स लगता है ज्वेलरी के अंदर. मतलब वो एम्बेड करने के लिए या चिपकाने के लिए वैक्स यूज होता है. एंड देन फिर इसके अंदर एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग जो ठगरी वो सब होती है कुंदन ज्वेलरी में होती है, एंड विच इज व्हाई वी आल्सो गॉट फेमस बिकॉज सिंस माय डैड स्टार्टेड द बिजनेस in Kundan jewelry and all, our biggest selling point was transparency. We will deal with 100% transparency. Customer से कितना पैसा चार्ज करना है, we will tell them that we are charging so much more and take the profit from them. Most of the jewelers, what they do is they are like, अरे यार customer को कौन समझाएगा, they are not ready to accept. So then they will just adjust and wait and be like, मैम हाँ आपको कम में दे रहे हैं हम लोग, ये वो है. But explain exactly क्या है, मतलब what is the ठगरी और what is the scam that happens when people use wax and everything? अभी देखो जैसे आप एक कुंदन का नेकलेस ले रहे हो, उसके अंदर ग्रॉस वेट नेकलेस का 100 ग्राम है. ग्रॉस वेट एज इन मतलब गोल्ड का वेट? टोटल वेट, नॉट द गोल्ड. ग्रॉस वेट इज द एंटायर वेट. नेट वेट विल बी द गोल्ड वेट. कुंदन मतलब स्टोन? कुंदन मतलब कुंदन स्टोन्स है, बट कुंदन वर्क मींस एनी ज्वेलरी दैट इज मेड विद वैक्स. अच्छा, कुंदन डज नॉट मीन स्टोन. स्टोन का नाम भी कुंदन स्टोन भी होता है, बट कुंदन ज्वेलरी मींस ज्वेलरी मेड विद वैक्स. एंड अगेन बाय वैक्स यू मीन कि वी आर यूजिंग द वैक्स टू करेक्ट फॉर स्टोन सेटिंग एंड एवरीथिंग. अच्छा, फॉर चिपकाने के लिए बेसिकली.
वैक्स यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कुंदन ज्वेलरी। हाँ, मतलब जैसे वो बेस और स्टोन के बीच में वैक्स भरा हुआ रहता है। तो अभी जब आपको ज्वेलर्स देखते हो आप, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलर्स, जिसमें आपको नेकलेस दिखेगा मोटा और वो लोग बोल रहे वेट, एंड देन समटाइम्स, सो वन थिंग यू नीड टू नो इज गोल्ड 1 ग्राम का आप दबाते जाओगे ना, इट कैन स्प्रेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लाइक वो बर्फ जो बनता है ना गोल्ड में, 1 ग्राम कैन स्प्रेड, मतलब तो वैक्स का वो मेन बना के उसके ऊपर बस डाल भी सकते हैं, वेयर वेट्स कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली, वेयर द साइज ऑफ द नेकलेस रिमेन्स द सेम। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 100 ग्राम, बेसिकली व्हाट यू सेइंग, हां यू कंटिन्यू, 100 ग्राम का ग्रॉस वेट ऑफ द नेकलेस। अ गाय हु इज सेलिंग ट्रांसपेरेंटली कैन बी लाइक, सर इसके अंदर बस 65 ग्राम्स का गोल्ड है, बाकी मोती, लाख, स्टोन्स वो सब का वेट है। बट समवन हु इज सेलिंग इन ग्रॉस वेट, जो मैक्सिमम कुंदन ज्वेलरी आज तक बिक रहा है, लाइक जयपुर में और हर एक जगह ग्रॉस वेट पे बिकता है, वो बोलते हैं 100 ग्राम का 5,000 रुपये ग्राम का दे दो नेकलेस आपका, बट यू डोंट नो हाउ मच इज गोल्ड, हाउ मच इज स्टोन्स। और बोले ज्वेलरी कौन बेचेगा, बट व्हेन दे सेल देन दे रियलाइज कि एक्चुअली उसका गोल्ड कितना था। तो फॉर आर ज्वेलरी, व्हेन पीपल गो बैक टू रीसेल, दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि इसमें एक्चुअल तो नेट, और वो 10-20 साल के बाद होता है। एंड देन द वर्स्ट थिंग कम्स इज, ऐसे मेनी पीपल कम टू योर होम ओनली, लाइक जयपुर से, बीकानेर से, वट एवर, वो घर घर पे लाके बेच देते, और पीपल बाय ऑल्सो, हाँ हम लोग को डायरेक्ट फैक्ट्री से मिल रहा है, हाँ ये तो कुछ में फैक्ट्री वाला क्यों करेगा, वो फैक्ट्री वाला दे रहा है ग्लॉस में, आपको जब बेचना पड़ता है आप जाओगे, एक तो प्योरिटी में देयर बी नो प्योरिटी बीइंग डन प्रॉपर्ली, देयर इज नो बिल फॉर एनी प्रूफ, मतलब आपके पास प्रूफ भी नहीं रहेगा कुछ भी चीज़ का, और न उसमें ट्रांसपेरेंसी है। सो जस्ट टू कम बाय दिस फैक्ट, वी एज अ रिटेलर्स वी have to be the voice of the customer, and this is not we are doing, and इसमें तो इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अ सुपर्ब जॉब विद द BIS हॉलमार्क एंड एवरीथिंग एल्स, एंड हम लोग को तो वो बस फॉलो करना है। कैसा है मतलब, एक्सप्लेन व्हाट। तो हमारे ऑर्नामेंट के पीछे देयर विल बी अ BIS हॉलमार्क which is compulsory by the government, which is saying that purity क्या रहना चाहिए, 916 रहना चाहिए, 75% रहना चाहिए, 18 कैरेट रहना चाहिए, it will be written 916 or 22 कैरेट, and the HOID code which will be a unique code for every different thing. That? तो एक BIS का ऐप रहता है विच यू कैन जस्ट डाउनलोड ऑन योर फोन, एंड यू कैन टाइप दैट नंबर एंड सी, एंड नॉट जस्ट दैट, आपको इसे मैग्नीफाइंग ग्लास डाल के ज्वेलरी पे देखना कंपलसरी नहीं है। सो एवरी ज्वेलरी रिटेलर इट इज कंपलसरी टू प्रिंट दैट नंबर ऑन योर बिल। तो इन आवर स्टोर एटलीस्ट एवरी आइटम विल हैव दैट नंबर प्रिंट ऑन योर बिल, तो आप वो उसको बस BIS ऐप पे सर्च करके देख सकते हो कि आपकी ज्वेलरी कितने प्योरिटी की थी। एंड नॉट जस्ट दैट, दिस इज कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट, बट इन आवर स्टोर वी ऑल्सो पुट द नेट वेट ऑन एवरी ज्वेलरी। तो अगर आपका बिल भी खो गया तो आपको नेट वेट आपका कभी भी दिखेगा, लेट इट बी अ कुंदन ज्वेलरी और बीडेड और स्टोन ज्वेलरी, बिकॉज इन आवर स्टोर वी डू स्टडेड ज्वेलरी मैक्सिमम, जिसमें बीड, स्टोन्स, वी आर यूजिंग कलर्स, बिकॉज वी आर मेकिंग ज्वेलरी, वी आर नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट, वी वांट यू टू वेयर इट एंड फील गुड इन द ज्वेलरी दैट यू आर वेयरिंग, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इट। एंड नॉट जस्ट दैट, हम लोग हमारा बिल भी हमारे स्टोर में जैसे ही बिल बनता है आपको व्हाट्सएप और SMS भी आ जाता है, तो फिर यू ऑलरेडी हैव अ डिजिटल कॉपी ऑफ द बिल एंड विच यू कैन ऑलवेज हैव अ सेव। अभी जैसे द माल प्रैक्टिसेस दैट हैपन इन द इंडस्ट्री आर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट सेलिंग टू यू प्रॉपर्ली, नो मैटर हाउ ओल्ड, देयर इज वेरी वेरी ओल्ड स्टोर्स जिनके हम लोग को कस्टमर्स आके प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, एंड वो बस चिट्ठी लिख के दे दिए, सर मैं इधर 100 साल से हूँ, मैं किधर भी नहीं जाऊँगा, वेयर एम आई गोइंग, बट देन व्हेन यू गो बैक विद द चिट्ठी एंड द ज्वेलरी दैट बी लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस बैक क्योंकि मैच नहीं हो रहा है or anything, so which is why a bill is necessary, I would what say. I understood is the biggest scam which happens in the industry is you will not get to know when you buy, it's the time when you're going back to sell the jewelry you will realize, and that might be after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, in many cases 30-40 years. Okay, and this again, this scam which majorly happens is of one type is ki weight के ऊपर quality and weight, तो probably जैसे gold में अलग अलग प्योरिटी का रहता है, मतलब लाइक यू सेड कि 91.6% गोल्ड है, कॉपर, जो जो एलॉयज लगते हैं, तो द हायर द प्योरिटी द मोर इट कॉस्ट। सो प्रॉब्ली पीपल विल बी लाइक कि हाँ 22 कैरेट का गोल्ड है बोल के आपको प्रॉब्ली 16 या 18 कैरेट का गोल्ड पकड़ा देंगे। एंड सेकंड थिंग विच दे डू इज कि ग्रॉस वेट बोलेंगे कि 100 ग्राम है ये पूरे सेट का, बट एक्चुअली उसमें नेट वेट will be only 50 grams and not compulsory, it can be anything, it can be 90 grams, it can be 80 grams, whatever, but I would say कि net weight जानना is important because that is what you will sell back the gold at, and so the people who basically buy कि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे, they probably get fooled, they think कि हमने 100 ग्राम का ज्वेलरी खरीद लिया है, but actually gold जिसका actual value तुमको मिलता है वापस is only 80 grams और 75 grams वैसा ही। और फिर हाँ, and then gold I would say investment wise buying gold is very good thing, like गोल्ड आई वुड से कि अगर फाइनेंस के हिसाब से बात करें एटलीस्ट 5% ऑफ योर टोटल एसेट शुड बी इन गोल्ड, बट यू आर सेइंग नॉट ज्वेलरी, गोल्ड आइदर बाय लाइक बुलियन गोल्ड और ज्वेलरी। देखो सी बिकॉज सी फाइनेंस वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विडेटिंग। अभी देखो फाइनेंस क्या होता है, इन केस यू हैव अ FD, यू हैव अ शेयर्स, यू हैव लैंड, व्हेन यू रिक्वायर यू सेल इट एंड यू पुट इन द रिक्वायरमेंट। अभी समझो कि यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यू नीड मनी,
you'll sell your land, you'll sell your FDs, you'll sell your shares to get that money. Jewelry is something that people wouldn't do. So I would say इमोशनल अटैच रहता है yeah, I would say मतलब ऐसा jewelry फीलिंग apart है from that. गोल्ड बेच दिए मतलब कंगाल हो गए वैसा टाइप का फीलिंग आता है लोगों को. हाँ मतलब नहीं वैसे तो बेचते भी है बट सी डिपेंड्स ऑन आई थिंक दैट्स व्हाई आई डोंट टेक इट अंडर द ज्वेलरी कैटेगरी. एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वेलरी नॉट एन इन्वेस्टमेंट. क्योंकि आप जब ज्वेलरी खरीद रहे हो यू आर बाइंग इट फॉर आइदर योर वाइफ, योर डॉटर और योर सिस्टर और एनीथिंग एल्स. यू आर नॉट बाइंग टू सेल व्हेन यू हैव अ रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर. You're saying jewelry is not an investment but gold is an investment. Yeah, gold is an investment. क्योंकि देखो गोल्ड, my father has many good stories of people who are there जो महीने हफ्ते साल अपने हिसाब से गोल्ड खरीदते हैं, either 1 gram a month or 10 gram a month. And then जब उनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है like a house or a new big business, they fall back on that investment and which has grown. क्योंकि अभी 10-20 साल में अगर आप 1-1 ग्राम महीने का कर देते हो and then गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ा है और आपके इकट्ठा भी हो गए बहुत गोल्ड. And then gold is one such thing that जैसे अभी कोविड हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब every other thing was down, that comes to your backing. I'm not saying 80% of assets should be in gold. I'm saying 5%. तो जब आपको वो requirement आता है, gold is there to save you and that is the investment. So which is why जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, jewelry is not investment because at that moment आप आपके family की jewelry नहीं बेचोगे, ना ही jewelry is not meant to be sold, it's meant to be passed on through generations. And we make also such jewelry जहाँ पे कि आप जो पहन रहे हो, you give it to your daughter, you give it to your son, like it passes on generations over hundreds of years. And that's how jewelry should be made. Like temple jewelry and Kundan jewelry are known for that. तो आप उसके हिसाब से ही खरीदो, पासिंग ऑन के हिसाब से. अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदोगे, then your mindset is such that आपको रिक्वायरमेंट आएगा और आपको बेचना ही पड़ेगा वो ज्वेलरी फॉर अ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक. बट टेल मी व्हाट वाज कोविड लाइक, क्योंकि जो मेरे घर में सिनेरियो था सब ऐसा बोल रहे थे हाँ भाई जितना गोल्ड है बेच दो, पुराने नोट ले लो, मतलब व्हाट वाज दैट डिमोनेटाइजेशन यू आर सेइंग. हाँ डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ऐसा था कि गोल्ड मतलब ज्वेलर्स बोल रहे थे कि हाँ लेके जाओ पुराने नोट हमारे पास क्या है, व्हाट इज दैट लाइक. So demonetization was one of the days when our ethics and business values came at play. I didn't join the business at that time. I was still in college, or I was doing my marketing business. Or that day, our businesses we all shut our jewelry stores and we went to sleep. But what was the market like? What was happening? Market that was time crazy. Everyone was coming with cash. कुछ भी ले लो. If you don't know, like not just jewelry, iPhone की दुकान में iPhones खाली हो गए. They are just giving cash and buying anything possible. वो लोग जो ज्वेलरी का था ना, ज्वेलरी सेट्स बिके, प्योर गोल्ड बिका, एवरीथिंग वेंट, क्योंकि लोगों को बस अपना कैश निकाल के ज्वेलरी लेना था. बट आई डोंट नो मच अबाउट दैट टाइम बट अगेन गवर्नमेंट का रूल है ना दैट यू बाय एनी ज्वेलरी यू हैव टू पे 3% GST और व्हाटएवर लाइक. बट डू पीपल एक्चुअली बाय विद बिल एंड लाइक हाउ डज व्हाट इज दैट, मतलब एक्सप्लेन. डू पीपल बाय विद बिल एंड there may be other people who also don't buy with bill, so what happens in that so scenarios? I'll tell you, up to August there was a difference between the cash rate and the GST rate. बट अगस्त में द गवर्नमेंट रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड. तो पहले अगर दुबई से आता था या कहीं से, इफ एनीवन इज गेटिंग इन द पॉकेट एंड सेलिंग, उनका बच रहा था 8-9% और समथिंग लाइक दैट. बट टुडेज डेट इज क्लोज टू 7 or 6%, इन विच द मार्जिन और नथिंग इज नथिंग देयर. सो टुडेज डेट इट इज चीपर फॉर एनीवन टू बाई इन बिल एंड यू कैन शो इट इन योर बुक्स दैट यू हैव बॉट इट. मतलब जो गोल्ड रेट आता है ना ऑन एनीथिंग, अगर आप MCX पे गोल्ड रेट देख रहे हो, MCX plus GST, मतलब at 3%, that is the gold rate you can buy from any retail shop. There might be a difference of 50-60 rupees, which is the delivery charge or a dealer premium. मतलब the MCX plus GST और let's say MCX पे अगर 100 रुपए, मतलब जो ऑनलाइन देखते हो गोल्ड रेट इन हैदराबाद टुडे, if that let's say is 100 rupees, तो so at a retailer 103.2, 103.4 वैसे आ जाएगा. मतलब 3.2-3.1% का फर्क रहेगा उसके अंदर. एंड देन वो आपको फिजिकल गोल्ड मिल जाएगा. एंड देन whenever you sell, GST आपको वापस नहीं आएगा. बट the rate which is saying, like अगर bullion app का देखोगे, there is Caps Gold, DP Gold, like there's many big bullion companies. अब जो वो screen पे rate देख रहे हो, the rate they are giving is including GST. There is no rate given without GST. तो अच्छा, तो online gold can only be bought with GST because 100% imports are there with GST. और जो इधर refine हो रहा है, everything is with GST. इधर non GST, even if something was running, it was running till August. Right now, if you are organized and you are doing everything in build way, that's how you can go ahead. क्योंकि अभी हमारे इसमें चेक भी होता है. There will be a weights and measurement के ऑफिसर्स जो आके चेक करते हैं. मैं वही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था कि अभी बीच में कुछ तो इलेक्शन का पीरियड आ गया, तो सब मेरे ज्वेलरी स्टोर ओनर्स के जितने भी फ्रेंड्स थे बोल रहे थे भाई हमारा तो कुछ भी नहीं है, बस घर जाके सोना है, कुछ भी काम नहीं. व्हाट हैपेंस इलेक्शन टाइम पे, मतलब हमारा कैश में, क्योंकि लोग काम करते हैं. व्हाट इलेक्शन व्हाट हैपेंस इज द कैश इज रिस्ट्रिक्टेड. सो नॉर्मली अ पर्सन इज अलाउड टू कैरी आई थिंक 2 lakhs with them and purchase anything of 2 lakhs. While election amount goes to 20,000 or 50,000, something like that.
तो आप उसके ऊपर से आप परचेजेस नहीं कर सकते हो. बट ज्वेलरी स्टोर में ऑनेस्टली टुडेज डेट मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग यूपीआई और दे आर जस्ट स्वाइपिंग अ क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर टू पे. तो शॉपिंग तो नॉर्मली ही हो रही थी वेर दे आर जस्ट पुटिंग अ कार्ड और एनीथिंग लाइक दैट. बट ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स कस्टमर्स हु वांट टू पे मे बी 2 lakhs इन कैश. तो वो लोग आपके पास आते नहीं है एंड दे विल कम आफ्टरवर्ड्स. बट इवन फॉर दैट देयर वाज मेनी सॉल्यूशंस. बट इसमें भी जैसे आई वाज टेलिंग यू टू वर्क इन यू नो हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज आर, आप उनके साथ काम करोगे तो इट्स बेटर. क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था ज्वेलर को BIS का चेक होता है. समवन ऑफिसर कैन जस्ट कम टेक एनी ज्वेलरी और उसको टेस्टिंग कर सकता है कि मार्किंग है नहीं है, और वो मेल्ट करते तो एक्चुअली वो प्योरिटी आ रहा है नहीं आ रहा है. तो स्पेशली लाइक वी हैव वो हमारा रिटेल आउटलेट थोड़ा बड़ा है एंड इट्स ऑन द मेन रोड ऑन MG रोड. तो हम लोग को तो हर एक ऑफिसर आके चेक करते रहता है महीने में एक बार 2 महीने में एक बार. तो फॉर अस इफ वी कीप इट प्रॉपर इवन दे आर हैप्पी दैट द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बी हर्ट. देन देयर इज अ वेट्स एंड मेजरमेंट पर्सन जहाँ पे आपके आके वेइंग स्केल्स और फिर वेट चेक करके बिल में इफ यू आर गिविंग ट्रांसपेरेंसी दे चेक ऑल ऑफ दैट. एंड देयर इज सो मेनी डिफरेंट ऑफिसेज दैट विल चेक एवरीथिंग. और अगर अपना हाउ वी हैव शिपिंग एवरीवेयर एल्स तो GST वाले आके चेक करते हैं कि आप IGST में ही पूरा बिल कर रहे हो ना, इफ इट्स गोइंग टू द अदर स्टेट, नॉट जस्ट बिलिंग एट दैट. और इसमें क्या होता है, इफ यू आर बिलिंग एंड सेंडिंग इट यू आर इंश्योर्ड in a complete way. Even if the package gets lost या कुछ भी, आपको आपके पैसे तो आ जाएंगे. The package is lost but you are insured. But still most people don't do जितना purely you are saying, right? Like how do people? Most people do this way only. It's just a misconception that. नहीं, it's not a misconception. अभी तो क्या होता है, see anyone who's a big players, like in Hyderabad also there will be 4-5 big players who have almost 80% of the people go there only to shop. Most of the big players have to run by the rules. क्योंकि आज के दिन आप इतना you cannot do a business because there is so many people involved. There has to be a trail, there has to be a tracking, there has to be insurance, and it's a jewelry business where it's precious goods. So by the books. So I think all the big people usually fall in line, but जो छोटे मोटे probably vendors हैं in the city, they probably थोड़ा cash में चला लिया, ऐसा कर लिया वैसे. Yeah, that's what. Most of the big stores fall in line and they are by the books properly, and that's how they'll also be happy. आज के दिन अगर आपको मैनेजर पे स्टोर छोड़ के जाना है, so I'll tell you the easiest way to know this is if the owner is sitting at the shop and running the everything. It is probably he is having everything, but if it's left on a manager, it is probably on the books and by the books क्योंकि he is living on people और जिसमें कितना चल रहा है पूरा बिल में ही होना है क्योंकि it's manager के हाथ में. That's how you keep a track. So I was talking to my brother and he was saying 2 things I observed. One thing was कि जैसे ही shop closing होता है पूरा inventory लेके जाके they put it in a certain place and उसके अलावा I asked him like how do you ever know if you're making money or not क्योंकि they do चिट्ठी business everything सब चिट्ठी पे लिखते हैं. So I asked him like how do you even know if you are making money or not, and he told me अगर मेरा स्टॉक बढ़ रहा है इसका मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ. So I want you to know this thing, मतलब how do jewelry owners like you know. So that is a traditional way. What you're saying is correct. Like even my grandfather, even my uncles, and even my dad, how they did business every year was while the year ending or before Diwali or sometime वो लोग सब क्या करते हैं गोल्ड का स्टॉक काउंट करते हैं केजीज में. एंड देन अगर लास्ट ईयर आपका पर्टिकुलर 1 kg था, ये साल 1.5 kg हो गया तो यू नो कि हाफ kg इंक्रीज, उतना प्रॉफिट हुआ. बट आई वुड से दैट इज़ नॉट द वे टू टेक प्रॉफिट और जज बिजनेस. क्योंकि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, आई फील स्पेशली एज ओनर्स एंड नंबर ऑफ ओनर्स हुआ देयर नॉर्मली हमारा भी फैमिली बिजनेस है, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली बिजनेस बिफोर एंड एवरी वन वर्क्स विद देयर ब्रदर फादर एवरीथिंग. आई फील एवरी वन शुड ड्रॉ सैलरीज वो दे आर रिमूविंग एंड प्रॉफिट है नहीं है. बाय द वे ऑल्सो कंपनीज विच आर वेरी बिग एंड दे आर स्टार्टअप्स एंड दे आर रनिंग, इवन वो लोग का लॉस में रन हो रहा है फिर भी द ओनर्स आर ड्रॉइंग अ सैलरी विच इज अ हेफ्टी सैलरी. So your business doesn't need to be doing well or you know bad for you to draw salaries. You but are how do you as a jewelry owner know whether you are like making money or no? ये तो monthly you can make P&L. तो basically for us तो मेरे systems थोड़े ज़्यादा I don't want to share उसमें ज़्यादा. So we as jewelers हमारा every day everything update हो जाता है with the purchasing, selling completely. तो हमारे बिजनेस का मेरे पास P&L स्टेटमेंट आई हैव फॉर वीकली मंथली क्वार्टरली एवरीथिंग. बट दिस इज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक देयर बी हार्डली एनी ज्वेलर्स विल नो दैट. तो नहीं तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज लाइक हाउ डज अ रिटेल ज्वेलरी स्टोर ओनर मेक मनी एज इन सी यू हैव सो मेनी सैलरीज टू पे, आपका प्रॉब्ली शॉप है, सम किसी का रेंट पे है, किसी का यू नो ओन्ड प्रॉपर्टी. सो हाउ डज लाइक अ ज्वेलर मेक मनी? वेस्टेज इज द ओनली प्लेस वेयर यू मेक मनी और लाइक व्हाट आर सम अदर प्लेसेस यू मेक मनी एंड दैट इज यू आर सेइंग 9 to 12% इज नो. तो देखो ना इसमें सी लाइक आवर स्टोर वी चार्ज फ्रॉम 12 to 20%. Depends. Okay. Lowest is 12%.
क्योंकि अभी वो 12% में द कारीगर ओनली यू हैव टू पे एनीवेयर फ्रॉम 6 to 12%, डिपेंड्स। अगर आपका प्लेन आइटम है तो 6% जाएगा, अगर आपका कुंदन वगैरह आइटम है तो 12% तो उसमें जाएगा ही खरीदने में ही। सो दैट्स व्हाट यू आर पेइंग टू द कारीगर्स। तो आपका जो मार्जिन रिटेलर का बचता है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इन इंडियन गोल्ड ज्वेलरी वी मेक क्लोज टू 2 to 4% ऑफ मार्जिन ऑन द टोटल सेल। लाइक सेल ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बट द मार्जिन इज only 2 to 4%. 2 to 4%। एंड इन केस अगर आपका कंप्लीटली डायमंड का काम है, we'll come to the diamond segment. I think like some of my friends मैं मार्जिन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका कंप्लीट डायमंड का काम है तो उसमें मार्जिन आपके 15 से 25% हो जाता है। तो विच इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू पुश डायमंड्स मोर एंड मोर, क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है। but gold jewelry is only around 2 to 4%. 2 to 4% मार्जिन फॉर द ज्वेलर, the retailer. हाँ, मतलब पर कस्टमर जो प्रीमियम पे कर रहा है ही विल बी पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 12 to 20% ऑन द गोल्ड वैल्यू। बट एक्चुअली आपको उतना मिल ही नहीं रहा, you're just making 2 to 4%. बिकॉज़ बट उनको वो दिख के आता है वेस्टेज। you have your rent, you have your marketing, you have your showroom, and अभी देखो सर्विसेज। अभी ऑनेस्टली आई विल टेल यू, समटाइम्स द कस्टमर शुडंट सी द वेस्टेज ओनली। जैसे हमारा स्टोर हो जाता है, we have like a 7-day exchange return policy, we have always a buyback on gold 100% if you have the bill। डायमंड का, लैब्रोन डायमंड्स का भी हमारा एक्सचेंज चलता है, एवरीथिंग चलता है इफ यू हैव द बिल। तो व्हेन यू आर गोइंग टू एनी बिग शॉप, मोस्ट ऑफ द स्टोर्स दे हैव अ वेरी गुड बायबैक एक्सचेंज पॉलिसीज विच यू कैन यूज, और वो आपके वेस्टेज में कवर हो जाता है। अगर आपके पास एक ज्वेलरी है जो आप एक्सचेंज कर सकते हो विद इन 7 days और एनीथिंग पसंद नहीं आया घर पे, that is better than getting a lower price and not being able to exchange। how does this usually exchange? Like let's say जैसे you told कि the price is 100 plus 3% GST is the price, you will sell me the GST will be back। so if you are exchanging within 7 days, अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल बना है मेरे पास, आपको पूरा 1 लाख का ही मिलेगा एक्सचेंज में, GST माइनस नहीं होगा, कुछ माइनस नहीं होगा। okay, तो which is why there's a 7-day policy, even though GST is filed, all that। no, I'm saying how do people usually like exchange jewelry? जैसे अगर if I buy from a jeweler 100 रुपए में अगर मैंने खरीदा, तो what percentage does the jeweler give me back when I go and see? Depends on, ये तो gold rate पे depend होता है। if you are exchanging within 7 days, it will be 100% at least for us, and then if you are exchanging after maybe 2-3 months or 2-3 years, whatever the gold depend होता है ना, तो and depends on how many stones, pearls और diamonds are there। diamonds का exchange होता है, stones and pearls का exchange नहीं होता है बिल्कुल भी, so that is zero, and आपको making price जो आप पे करते हो extra, उसका value नहीं मिलता है। okay, so just for an example, if I bought gold from any place at 100 rupees, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, लेट्स से आपका कुंदन पर्ल वगैरह, तो प्रॉब्ली गोल्ड का वैल्यू सिर्फ 80 था, 20 एक्स्ट्रा आई पेड फॉर व्हाटएवर पर्ल्स, एंड 10 साल के बाद ज्वेलरी का प्राइस जो गोल्ड 80 मैंने ग्राम्स खरीदा था या 80 रुपीज का जो भी खरीदा था, 150 है गोल्ड का प्राइस। सो दैट 150 100% करेक्ट, फुल पूरा गोल्ड का प्राइस मिलता है। दिस इज आल्सो डिपेंड्स स्टोर टू स्टोर। देखो जैसे हमारे स्टोर में वी टेक अ 100% एक्सचेंज नो मैटर कहाँ से खरीदे हो। अभी थोड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे अगर उनका ही खरीदा हुआ है तो they'll buy it back, किसी और का है तो they won't buy it back। Gold jewelry also? Gold jewelry also, anything। They'll either, even if they're buying it back, they'll reduce 5%, 7%, something from that। So people do that also, that some places you will get, usually same place पे अगर आप जा रहे हो, जैसे आपसे खरीदा आपको बेचा, तो I will get close to 100% value। मेरा किसी का भी मेरे को देगा तो 100% मिलेगा। But for other stores, I'm saying generally people, so even like a big corporate showroom, no, अगर आप ना उनका ऑफर चलता है महीने में एक बार की 100% एक्सचेंज, मतलब while that offer is going on, you get anyone's jewelry, it's 100% exchange। But if you go on some other time, they'll remove like 3 to 7% for exchanging someone else's gold। okay, because actually refining cost वगैरह लगता है 0.5% और 2%, depends on क्या refine कर रहे हो, कुंदन ज्वेलरी। but you're saying also this is a place when then probably jewelers make money exchange में? Probably not। okay, it's only selling में usually। yeah, selling is the only where jeweler makes money। okay, and then everything else is the cost। अभी आपका रिपेयर कर रहे हैं, आपका एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी मैं सुना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा थोड़ा पॉलिश करके दे दो ना, ऐसा कर दो ना, वो सब कर दो ना। या तो वो सब फ्री में ही सर्विस होता है। अगर आपका हमारा खरीदा हुआ है तो वी हैव टू पुट अ कारीगर, वी हैव टू एम्प्लॉय, हमारा चार्ज तो जा रहा है बट कस्टमर को फ्री में हो रहा है वो सब। सो इट्स अ एडेड ऑन कॉस्ट। सो मोस्ट ऑफ द एवरीथिंग एल्स इज अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर अ ज्वेलर। एवरीथिंग एल्स इज नॉट अ सेल्स या प्रॉफिट उससे नहीं होता है। एंड देन अगेन आई हैव हर्ड दीस टू प्लेसेस का नाम बहुत ज्यादा, आई थिंक मुंबई एंड कैलकाटा कोई तो बोलता है कारीगर इधर अच्छा है, या मुंबई में व्हाट आई हैव हर्ड इज कि वन ऑफ माई ज्वेलर फ्रेंड, आई टोल्ड हिम कि भाई मेरे को ऐसा चाहिए, वो उसके कोई मुंबई में व्हाट्सएप में उसको कोई फोटोज भेजता है, वो मेरे को फोटो दिखाता है। सो व्हाट इज दिस मुंबई एंड ज्वेलरी? मुंबई इज द प्लेस वेयर द बिगेस्ट ज्वेलरी एग्जीबिशन इन इंडिया हैपेंस ट्वाइस अ ईयर, व्हिच इज द IIJS एंड सिग्नेचर। तो उधर किसी का हुआ, लाइक उधर सप्लायर बॉम्बे का है नहीं है, बिजनेस सबका बॉम्बे में हो जाता है, बिकॉज दैट इज द एग्जीबिशन जहाँ पे देयर इज लाइक
1,000+ suppliers who have booths of exhibition and everyone goes and selects कि किसके पास अच्छा माल है क्या है. But like that, the biggest manufacturer in India of jewelry is from Coimbatore. Not Kolkata, not Delhi, not Mumbai. तो like is a company called Emerald, जिसका माल हर एक रिटेल शॉप में, let it be a Malabar, let it be a Tanishq, let it be a Panna Jewelers exclusive, they have their jewelry in every one store and they are the biggest manufacturers in India and probably one of the biggest in the world also. जो वैसे क्रिएट करते हैं एंड उनके होलसेलर्स हर सिटी में होता है. एंड बॉम्बे का भी बेस, आई डोंट फील लाइक बॉम्बे इज अ बेस हाउ यू आर सेइंग. एवरी सिटी का एक एक खासियत होता है. सी लाइक बॉम्बे एंड सूरत इज वेरी फेमस फॉर लाइक फैशन 18 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी. एंड देन जो जयपुर इज फेमस फॉर जड़ाऊ, कुंदन और बीड्स जो आते हैं आपके प्रेशियस बीड्स, स्टोन्स लेना है, जयपुर इज फेमस फॉर दैट. Calcutta becomes again famous for कारीगरी. Most of the कारीगर्स in the jewelry industry are Bengali. तो वो पूरे बंगाल से आए हुए हैं कौन से भी सिटी में. तो Calcutta is famous for your Bengali work, Bengali कारीगरी, plain gold. And even then again Kerala and the southern Chennai and all become famous for plain gold के उधर बहुत ज्वेलरी बनते हैं. Then Hyderabad, Bangalore become famous for नक्शी. नक्शी जिसमें handcrafted बड़े necklaces बनते हैं. तो सब एरिया का अलग अलग, सब एरियाज का अलग अलग है. दिल्ली becomes famous for, अभी जैसे in Chennai, Hyderabad and Bangalore, diamonds are only sold of EF VVS, which is the highest color, highest clarity. But in Delhi, diamonds is used of lower color, lower clarity, but which is budget friendly. तो अभी जैसे लाइट वेट डायमंड नेकलेसेस या बजट में चाहिए तो वो आपको दिल्ली के होलसेलर से मिल जाएगा बेटर, rather than a हैदराबाद और बैंगलोर और चेन्नई रिटेलर. We'll come fully to diamonds now. Okay. You explain me, अभी मतलब काफी कुछ चल रहा है, but explain me what is a diamond? You said people make money there also, so tell me what is the diamond story? तो डायमंड स्टोरी में तो फर्स्ट आई थिंक बिफोर द पॉडकास्ट व्हेन यू आर आस्किंग मी इज डायमंड एन इन्वेस्टमेंट, आई वुड से सो मच सो द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग आई विल से इज I don't believe a natural diamond is an investment. I don't believe lab-grown diamond also is an investment. I don't believe silver is also an investment in that way. अभी मैं हर एक चीज़ का लॉजिक बोलूँगा. As I told you before also, as a investment is something that you can sell and use for something that you want. अभी आप SIP करते हो, कुछ भी करते हो, it is for buying a car, it is for a vacation, it is for a dream business you want to start. Jewelry is not something you are just putting in जहाँ पे आप बाद में बेच के कुछ करोगे. You will spoil your relations with all your close people or family if you sell your jewelry and do something with it. So jewelry is a fashion thing, it is a status thing, it is everything else. It is not an investment. Gold will be an investment. उल्टा उसमें डायमंड जब ऐड करते हैं and people buy diamonds as an investment, that blows my mind. आप डायमंड खरीदो as a fashion thing because it lusters everything. There is many positive things about diamond, but investment is not one of them. Everything great about diamond is only fashion related. Fashion related. Diamond is one of the purest form of carbons. मतलब डायमंड इतना, why is diamond, उसका मार्केटिंग एंड वो सब इज गुड बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज मेड ऑफ कार्बन, like a human body, the sofa, the chair or everything, but the carbon particles differ. But diamond is the purest form of carbon, and उसके अंदर diamond is also the hardest substance on the planet Earth. Hardest मतलब क्या? There's a measurement called the Mohs scale. तो उसका grading होता है 1 to 10, and diamond is the only thing that comes on 10. Nothing else comes. तो इसीलिए जब आपको glass cut करना है या आपको जब इवन द ग्राइंडर्स विच डू द क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर के लिए जो होता है ना डिगिंग, तो उसके अंदर भी मशीनरी इज लाइंड विद डायमंड्स ओनली, इसीलिए वो कॉस्टली होता है एंड ऑल दैट. डायमंड मतलब डायमंड डस्ट, एंड सो डायमंड हैज मेनी ग्रेट क्वालिटीज एंड द लस्टर एंड एवरीथिंग इज मेड. बट इफ यू सी अ डायमंड विच इज रॉ, इट इज लाइक अ नॉर्मल स्टोन. उसको कट पॉलिश पूरा प्रोसेस कर करके इट इज बिकमिंग अ लस्टरस थिंग. ज्वेलरी, गेट ऑफ दैट, इट इज़ अमेजिंग, दैट शुड बी अ चॉइस. बट आई फील देयर इज अ बिग थिंग जब आप इन्वेस्टमेंट खरीद के उसको खरीदते हो. इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट हैज़ नॉट गॉन अप इन वैल्यू इन द लास्ट 10-15 years. लेट इट बी अ सॉलिटर, लेट इट बी अ 1 to 5 cents. कौन सा भी डायमंड वैल्यू में अपने गया है, नीदर लैब ग्रोन नीदर नेचुरल, ऑल आर कमिंग डाउन इन वैल्यू कम्प्लीटली. So ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, so मार्केटिंग गिमिक ही है 80, 90, 100 years से. एंड देन द फनीएस्ट थिंग इज, यू नो, लाइक बिग कंपनीज are trying to use the name of, you know, De Beers, who is the biggest manufacturer of diamonds and the biggest miner, and now that company is up for sale. De Beers is up for sale, like they are looking for buyers and everything. It's all on news. And then Indian corporate companies, they are like, oh, De Beers is supporting us, but De Beers himself needs support at this point. So De Beers, like basically for the audience, they control the largest mining. 80 or 60 to 80% of the mines, world's diamonds come from De Beers, which De Beers mines, which is in South Africa, Russia, multiple places.
एंड दैट एंड नाउ व्हेन आई कम टू सिल्वर, जैसे आजकल मैं सुनता हूँ, लाइक आई एम अ वेरी बिग फाइनेंस एंथुजियास्ट, आई एंजॉय द स्टॉक मार्केट्स एंड एवरीथिंग. मेनी पीपल आर लाइक ओ सिल्वर खरीदना चाहिए, सिल्वर इज एन इन्वेस्टमेंट. एंड जस्ट फॉर द ऑडियंस आई विल टेल यू, एज आई टोल्ड यू, जो गोल्ड रेट का इंक्रीज हो रहा है ना, पहले आपका गोल्ड रेट इंक्रीज हो रहा है 4% इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, बट बिकॉज ऑफ डॉलर एंड रुपी डेप्रिशिएटिंग, इंडियन रुपीज में अगर आप खरीद रहे हो आपका गोल्ड इंक्रीज हो रहा है 9% पे. करेक्ट. बट अभी सिल्वर की जब बात करते हो, सिल्वर इन 2011, सिल्वर इन टर्म्स ऑफ डॉलर वाज 56 और $55, एंड टुडेज, मतलब वो टाइम पे सिल्वर एक बार 90 रुपीज टच हुआ था, और आज के डेट पे सिल्वर इज ओनली 36 और $35 today's date, come down and is 99 rupees because the dollar has gone up. So if someone would have invested in dollars in silver, it is still less than value. 12 साल हो गए, and then it has not gone up ever since. तो आज के दिन पे अगर सिल्वर का लाइफ टाइम हाई जो था $55, if it is there today, silver should be close to 202 rupees or something like that per gram. So you're saying silver has not gone up in? It is not an investment. वो आप अगर डॉलर्स खरीद के रखते हो तो आपके उतने ही जाते. डॉलर वो टाइम 30 रुपए था, डॉलर आज के दिन 86 रुपीज है. Understood. So dollar also moved the same way. Like you have invested in the dollar, not in silver. Understood. So now coming to diamond. So I saw your vlog recently again. So you said it comes as a stone. तो अगर let's say इतना बड़ा diamond का stone mine होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, जितना भी बड़ा diamond का stone mine होता है, उसमें से like कितने diamonds निकलते हैं या क्या size, मतलब basically my point is डायमंड में वेस्टेज वगैरह कितना होता है, मतलब कितना भी अगर स्टोन निकलता है तो एक्चुअली उसमें से डायमंड कितना निकलता है वैसे? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायमंड होता है, डायमंड का प्रोसेस एंड मशीनरी इज वेरी एडवांस, एंड सूरत इज द प्लेस वेयर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स आर कट पॉलिश इन देयर. तो माइन अफ्रीका में होगा, रशिया में होगा, यूएस में होगा, इंडिया में होगा, माइन कैन बी एनीवेयर. कट एंड पॉलिश मैक्सिमम इज बीइंग डन इन सूरत. सो दे हैव वेरी बिग फैक्ट्रीज, वेरी बिग मशीनरीज दैट हैपन. सो फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज, अभी जैसे आपने बोला कि वो पीस है डायमंड का, तो एक उनका एक एक्सरे मशीन होता है, सोनोग्राफी मशीन, तो विच दे पुट एंड दे सी व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द इंडेंचर्स, और फिर वो लोग क्या करते हैं, उसमें कितना बड़ा डायमंड कट कर सकते हैं वो देखते पहले, क्योंकि जितना बड़ा डायमंड उतना ज़्यादा प्राइस, और फिर उसमें देखते हैं कि बड़ा डायमंड में क्लैरिटी और कट कितना आना चाहिए. अभी समझो कि तो सोनोग्राफी मशीन टेल्स यू, अगर मैं ये 3 कैरेट का डायमंड कट करूंगा तो मे बी इसमें क्लैरिटी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा ही स्क्रैच है उधर, तो फिर वो लोग 2.5 कैरेट करेंगे. 2.5 कैरेट में क्लैरिटी हाई आ रहा है, तो again explain this also, like what is clarity? Clarity means अभी देखो डायमंड में आपके बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, वो होता है क्लैरिटी, लाइक अगर कुछ क्रैच आ गया, ब्लैक डॉट आ गया, और दैट इज समथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग द लस्टर. But this is all natural. This is all natural. lab grown, all is same. Like the way the process is happening is exactly the same. No, I'm saying जैसे अभी अगर because naturally diamond बन रहा है उसके वजह से कट है, लस्टर है. ये तो lab grown में भी होता है. अच्छा. So it is basically in such a heat and pressure. When the carbon is reacting, it is basically carbon के अंदर scratch वैच हो गया या कुछ भी. It is तो it's all natural process. उसके वजह से and natural or unnatural that happens in every carbon. No, basically what I meant कि lab grown खरीद लो या regular diamond खरीद लो. वो रहेगा ही. Clarity में रहेगा, color में रहेगा, because that's the way you cut. तो all these decisions are taken from the sonography machine. वो लोग देख के प्लान करते हैं, एक में आप 3 डायमंड कट कर सकते हो या एक हार्ट शेप कर सकते हो, and then based on that planning then they cut. And then जो रफ होता है ना उसको फुल्ली यूज होता है. अगर इतना भी छोटा आपका रफ है उसके अंदर 3-4 डायमंड निकाल देंगे, फिर छोटे छोटे 10-12-20 डायमंड निकल जाएंगे, तो द रफ इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली यूज्ड. रफ एज इन रफ, तो जो डायमंड माइन होता है उसको रफ बोलते हैं. ओके. वंस इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड अ डायमंड. ओके. तो डायमंड इज, तो द 3 मेन थिंग्स फॉर अ डायमंड इज आपका जो नीचे का होता है बेस, एंड देन सेंटर का होता है जो टेबल, एंड ऊपर का जो है तो क्राउन. ओके. तो वो पूरा बनने के बाद ही डायमंड होता है. रफ तो इज जस्ट अ बेसिक स्टोन. Okay. And the diamond doesn't come like that in that shape. You know, खोदने से वो हम लोग को they make it chiseled and everything, then they make it completely cut polish करके बनता है वो luster. If you even find a diamond, it looks like a quartz. You won't know diamond है. Cut polish hardness करने के बाद पता चलेगा कि this particular thing is a diamond. Then the process is actually pretty long. Cutting polish वो planning के अंदर, and then after the sonography thing happens, then फिर वो मशीन में डालते, then a machine cuts the diamond according to आपको एक फुल पीस कितने कट में मिलेगा, then it goes to a कारीगर who हाथ से कट पॉलिश वो सब करता है completely. And this is how a diamond is made. And I think इसमें also from what I have seen, diamond का भी अलग अलग variety है, अलग cuts है, shape है, size है. And even the origins अलग है. जैसे भी माइंस भी अलग अलग माइंस होता है, साउथ अफ्रीकन माइंस है, रशियन माइंस. So the cost depends on that also? नहीं, cost mainly depends on the size, and then the देखो 4 चीज पे डिपेंड होता है.
कैरेट विच मीन्स द वेट, विच इज द साइज, कितना बड़ा डायमंड है, कलर अभी वाइट कलर, कलरलेस क्या है, पिंक कलर, येलो कलर, व्हाट कलर इज इट कमिंग टू, एंड देन द थर्ड इज क्लैरिटी, स्क्रैचेस कितना या इंक्लूजन या फेदर्स और वॉट एवर कितना है, एंड देन द थर्ड कम्स इन द कटिंग, कटिंग इसका कितना अच्छा हुआ है. सो कैरेट, क्लैरिटी, कट एंड एक और क्या था, ठीक है 3-4 थिंग्स. बेस्ड ऑन दिस 3-4 थिंग्स आपका डायमंड का कॉस्ट यस करेक्ट डिसाइड होता है. बट लाइक गोल्ड, लाइक देयर इज अ एक्सचेंज कि भाई दिस इज द एक बेंचमार्किंग है कुछ तो गोल्ड का प्राइस के लिए फॉर डायमंड्स. सी आई टेल यू टुडेज डे, अगर आप छोटा छोटा डायमंड ले रहे हो, नेचुरल का बोल रहा हूँ मैं, तो अ नॉर्मल फैमिली रिटेलर इज सेलिंग इट फॉर 48,000 रुपीज अ कैरेट, 50,000 रुपीज अ कैरेट, एंड अ कॉर्पोरेट लाइक अ टाइटन और इवन अ मलाबार इज सेलिंग फॉर 1 लाख रुपीज अ कैरेट. So a Titan or a Malabar will buy it back at 1 lakh rupee a carat. The family jeweler will buy it back at 50,000 rupees a carat. तो basically diamond में आपको jeweler का trust होना चाहिए. Whoever is selling it to you will buy it back at the rate they are selling it. But you are saying there is no benchmarking. There is no benchmark, there is no way. अभी जैसे गोल्ड होता है, आप इसकी दुकान जाओ 8,000 है, मेरे दुकान जाओ 8,000 है, उसकी दुकान जाओ 8,000 है. And मतलब I can see stock exchange में को किधर जाने का जरूरत भी नहीं है. But then why is there no benchmarking for diamond? Diamond has no rate. Diamond has a benchmark for the wholesaler which called a RAP report. Okay. ये एक इजरायली गाय है, मार्टिन रैपोर्ट, who has gone with that, but that is just for wholesale and manufacturing. By the time it comes to the customer, it is all based on look and feel. अभी से डायमंड मार्केट में one of the worst thing that happens is, अभी आपके पास कोई सेलर आता है, बोलेगा सर 1 कैरेट का डायमंड 4 लाख रुपए का, हम लोग बोलेंगे ठीक है. कल के दिन कस्टमर आता है, बोलेगा सर 1 कैरेट का डायमंड चाहिए. आप कॉल करके पूछोगे अरे कल 1 कैरेट का डायमंड दिखाया था ना, मेरे को प्राइस बोलना. वो बोलेगा हाँ सर आज वो 6 लाख रुपए का है. मतलब so whenever you show demand and you ask, always the price increases somehow. Okay, and there is no basis for it. There is no basis. And again, so basically production cost, like you were saying कि gold में डाई का फिर भी making charge लगता है. For producing, if I just go unit, जो भी person manufacture कर रहा है, उसको तो जो मशीनरी जो सब चीजें involved है, उसका ही cost है. But when it comes to the seller, कुछ भी रेट पे बिक रहा है, मतलब let's say for the miner also. जैसे wholesalers वो सब है, वो तो बस डायमंड स्टॉक रख के बेच रहे. बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू राइट नाउ द डायमंड मार्केट सिनेरियो इज वेरी ग्रिम, वेरी लो, वेरी बैड सिंस द लास्ट 2 years, एवर सिंस लैब-ग्रोन हैज कम इन. लाइक इफ यू हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर्स और समथिंग, सूरत में देयर इज मोर देन 40% ऑफ द वर्कर्स ऑफ द डायमंड्स, दे हैव नॉट गॉट जॉब्स बैक, और दे हैव बीन जॉब्स नहीं उनके पास. एंड नॉट जस्ट दैट, जिसका जॉब्स भी है, कटिंग के लिए डायमंड्स नहीं आ रहा है, रफ का डायमंड नहीं आ रहा है. द डिमांड ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री हैज गॉन डाउन. People are not buying. People are not buying natural diamonds, they're buying lab grown, but even the lab grown demand is not such big to take over the natural demand also. जैसे अभी US में almost 30% of the diamonds that is sold is lab grown. India में that percentage is still like around 2 to 3%. China also that percentage is close to 30%. And in US is climbing on very very fast, where the percentage of jewelry that is lab grown is going up very fast, solitaire rings and everything. But अभी कारीगर्स का भी जो जॉब गया है, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक इतना हो गया है, कट पॉलिश कर करके डायमंड इतना पड़ा हुआ है, और कट पॉलिश नहीं करना है, तो फिर और जो भी रिटेन भी हुआ है कारीगर, उनके सैलरी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर गिर चुके हैं. So saying there is so much excess stock available with the wholesalers and with the big factories in the Surat that, and इतना लोग खरीद ही नहीं रहे. नॉट सूरत, अभी देखो सूरत में कट पॉलिश होता है, स्टॉक तो सब जगह है, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर, सबके पास भरा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी का नहीं बिक रहा है. एवरीथिंग इज स्टक. Understood. And also just for the audience to know, I am a pro lab grown diamond person, in which my wedding was done last year only, and then most of the jewelry that we used was completely lab grown. What is the difference, lab grown diamond, natural diamond? Just the origin is the difference. Lab grown machine में बनता है? Lab grown machine या lab में बन रहा है. Mined is getting mined and it's coming from the thing. The cutting, polishing, processing, everything is the same. The 4 C's जो बोले थे, carat, cut, color, clarity, everything else is exactly the same. Origin में difference रहता है. And price there is a huge difference. जैसे my engagement ring which I gave to my wife, which was like 4 carats. 4 carats of diamond in lab grown, I got it for close to 1,20,000. And then if I go for a natural 4 carats, it will be close to 1 crore. 1 crore 4 yes, carats. For the same color and clarity. So then the difference is such that you can get a very good luster diamond and everything. And me being a jeweler, most of my friends also went for lab grown diamond because they saw me as a jeweler. If I have done, they are like, he knows better, he is doing it, why not we? And then when people ask me क्या difference है, क्या है, and then थोड़े लोग का है कि पैसे ज़्यादा spend करना, I don't know for what reason. आप बचा दो, हैंड बैग में स्पेंड करो, हनीमून पे स्पेंड करो, किधर भी स्पेंड करो. Why do you want to spend on the same time? Unless and until थोड़े लोग का बहुत ट्रेडिशन होता है where the decision makers may be a grandmom or a mother or a father जो बोले नेचुरल ही लेना है,
where you don't have any decision making power, that's how they end up taking natural. Otherwise most of the people I'm seeing young wale lab grown ही use करे. जैसे honestly even for us most of the jewelry that we made was in lab grown, but under pressure some designer jewelry which we had to buy, designers don't use lab grown currently, but that will change on the market later. So उसमें हम लोग को natural लेना पड़ा because the designers are not using lab grown. अगर I have another this question only that you know you were saying कि गोल्ड का फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, आपका मतलब 10 ग्राम का 80 ग्राम भी गोल्ड है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, डायमंड का कुछ वो भी नहीं है, नो रीसेल वैल्यू, नो डिपेंड्स ऑन द ज्वेलर. अभी वो ज्वेलर बहुत बार हार्ट उठा देता है. मेनी टाइम्स यू बाय इट फ्रॉम जस्ट अ ट्रेडर और अ डीलर. नो वन इज गोइंग टू बाय इट बैक इफ इट्स अ ट्रेडर और डीलर. ओनली इफ इट्स अ बिग रिटेलर ही विल बाय बैक डायमंड्स एंड दैट आल्सो हैज द बिल. आपके पास बिल रहना चाहिए उसका भी. एंड व्हाट परसेंटेज लेस? सी इफ यू वांट टू एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स गिव 90 to 100% ऑन एक्सचेंज. डायमंड देके कुछ और डायमंड का ले रहे हो आप. अगर आपको कैश चाहिए तो वो 50 to 60% होता है, 50 to 100% एक्चुअली. सी लाइक वी एट आवर स्टोर वी डू 70%. सम स्टोर्स विच सेल ओनली बिग सॉलिडर्स दे विल बाइट बैक ओनली एट 60%. बट समथिंग लाइक अ तनिष्क दे बाइट बैक एट 100%, विच इज व्हाई आई से कि अगर आप नेचुरल डायमंड्स खरीद रहे हो तो बाइट फ्रॉम अ तनिष्क, पर वो आपको लेगा भी बहुत ज़्यादा पैसे, बट बाईबैक का गारंटी इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट. जैसे आप बोल रहे हो ना लाइक द डायमंड में बाईबैक बिल्कुल नहीं है. अगर आप इन्वेस्टमेंट मानते हो और आप छोटे ज्वेलर से लोगे जो आपको बाई बैक भी नहीं करेगा, जो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही आपका कैंसिल कर दिया. अगर आप तनिष्क से लोगे यू पे मच मोर बट यू गेट द बाई बैक गारंटी. सो ये जो डायमंड का है स्पेसिफिकली इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट शो. क्योंकि लोग इतने बड़े मतलब आई हैव सीन लाइक सो मेनी इन मारवाड़ी अग्रवाल फैमिलीज ये बड़े बड़े डायमंड के सेट. सो इट्स प्योरली एवरीवन शो. आई टेल यू मैंने इतने करोड़ कर दिया. बस मारवाड़ी लोग नहीं, लाइक देयर विल बी तमिलियन फैमिलीज, देयर विल बी तेलुगु फैमिलीज, देयर विल बी पंजाबी फैमिलीज. एवरीवन it depends on your social status. You want to wear diamonds. It's just a social status कि भाई मैंने इतने करोड़ का ये खरीदा है, उतने करोड़ का वो. अभी आप बस दिखा रहे हो. अभी कौन बैग का क्या मतलब हो जाता है. अभी आप LV का 1-2 लाख का बैग घूमे, मतलब क्या मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम है इतना लेने का. इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज योर सोसाइटल मैसेज कि मेरे पास पैसा है इतना, ये खरीद के बस ऐसे रखने का. इवन योर कार का क्या मतलब यार. आपका पर्पस तो हो गया, मारुति में भी चलेगा, मर्सिडीज में भी उतना ही चलेगा. अभी बड़े कार खरीदने का क्या है, मैं बड़ा कार खरीद सकता हूँ. दैट इज नथिंग. इवन डायमंड सेट इज सिमिलर एंड प्लस मे बी इट्स अ पर्सनल गोल आल्सो. अभी देखो स्टेटस की भी होती है, पर्सनल गोल भी होता है. अभी एज अ हस्बैंड और एज अ फादर इट माइट बी अ गोल कि यार मेरे को अपने एक डायमंड सेट देना है मेरे मम्मी को या तो फिर मेरे वाइफ को, तो उनको अपना वो कंप्लीट करना है. इट इज देयर ग्रोथ साइकिल. सी पर्पस इसमें डिफरेंट होता है. फॉर सम पीपल इट मे बी सोसाइटी, फॉर सम पीपल मे बी पर्सनल ग्रोथ जिसमें लाइफ का अकम्पलिशमेंट हो जाता है. बट जस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव गया. सी दैट्स फाइनेंस एंड ज्वेलरी डजंट मैच. आपको फाइनेंस बात करना है, हम बैठ के बात करेंगे प्योर गोल्ड की, SIPs की, म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंसेस की एंड ऑल ऑफ दैट. बट बिकॉज़ दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. मतलब हाउ पीपल बाय ज्वेलर्स हु मिक्स दैट आई फाइंड आई डोंट लाइक इट मच. क्योंकि यार अभी जो इन्वेस्टमेंट बोल के एकदम प्लेन गोल्ड बेचते हैं यार, वो ज्वेलरी भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो बीच में अटकी हुई है. या तो आप सेल ब्यूटीफुल ज्वेलरी और सेल गुड कॉइन्स विच आर इन्वेस्टमेंट. डोंट सेल लाइक अ हाफ कॉइन हाफ ज्वेलरी जो ना ही कॉइन के पर्पस है ना ही ज्वेलरी का पर्पस है जो पहन सकते हैं. यू नीड टू डिसाइड योर लेन एंड जस्ट फोकस. एंड ऑल्सो जैसे a question which you were also asking me before कि you know if a jeweler is starting out, I would say कि आपको niche decide करना पड़ेगा. niche cannot be like मैं सस्ता ज्वेलरी बेचूंगा या तो मैं कॉस्टली ज्वेलरी बेचूंगा. that is not a niche. niche is कि आप प्रोडक्ट चूज कर लो ना. what do you want to specialize in? Do you want to specialize in diamonds, bangles, chains? What do you think if let's say someone who wants to start something in jewelry, that guy should be passionate about it. Okay. Basically whatever passionate. देखो आज के दिन there is a amazing jeweler from Bombay, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ. ही मेक्स वेरी गुड कंटेंट. ही सेल्स ओनली चेन्स. वो हर रोज एक रील बनाएगा चेन्स, एक चेन के बारे में बात करते हुए. तो ही इज सो पैशनेट अबाउट हिम दैट चेन्स विल गो. उसके वेबसाइट पे भी 1000 डिजाइन के चेन्स है. तो ही हैज स्पेशलाइज्ड ऑन वन थिंग. You select one thing. If you are a new person who's starting out fresh, if you want to get into jewelry, you should be passionate about jewelry. Pick up one product, like either diamond decide कर लो या chain decide कर लो. Do that, and then you're saying market it well. Those 3 things will help you succeed in this area. और नीश तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा. सी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन पे बिजनेस नहीं होएगा. सी फॉर इवन फॉर यू गाइज यू डू फोटोग्राफी. अभी आपका क्या है इवेंट्स वेडिंग वो सब एक चीज नीश कर दिया है. अभी देयर बी फोटोग्राफर्स हु विल सक्सीड ओनली बाय बीइंग कमर्शियल फोटोग्राफर्स. देयर बी फोटोग्राफर्स हु बस फूड का लेगा, फोटोग्राफर्स ओनली पोर्ट्रेट्स लेगा, फोटोग्राफर्स ओनली बेबीज का लेगा. यू सी द पीपल आर एक्चुअली अर्निंग मोर, हैव अ नीश. अभी बेबी फोटोग्राफर्स जो न्यूबॉर्न का होता है, हाउ मच डू दे अर्न वेरी वेल. अगर आप बोलेगे मैं जनरल फोटोग्राफर हूँ, जो भी काम बोलोगे मैं कर लूंगा, नहीं होगा. आपको पैसा भी नहीं मिलेगा वो कर, मतलब 500 रुपए का बेबी का भी मिलेगा, उसका भी उतना ही मिलेगा. बट अभी बेबी का प्रोफेशन लोगे वो 50,000 रुपए ले सकता है एक दिन के शूट का.
तो जितना नीश होता है पीपल विल ट्रस्ट यू. एंड देन देयर इज अ वेरी गुड शॉप इन हैदराबाद आल्सो व्हिच इज ओनली सॉलिटर रिंग्स. मतलब वो दुकान का नाम ही सॉलिटर रिंग्स है. तो वेडिंग रिंग के लिए पीपल गो देयर एंड बाय. I had one more this idea with respect to gold jewelry. So what I observed is कि अगर आपके दुकान में 100 या 1000 प्रोडक्ट है तो what I observed was ये पूरे 100 या 1000 प्रोडक्ट आपके खुद के नहीं है. You guys get stuff from wholesalers, अपने दुकान में रहता है. I don't know if you guys pay them or no. पेमेंट होता है. अच्छा पेमेंट होता है क्या? You can't just keep their stock in your store for some time. देखो जैसे how does this ecosystem I want to know about I'll tell you. See, normally most of the retailers payment होके आता है, but once or sometimes in a year, जैसे मेरा last month we were doing a bangle मेला. अभी बैंगल्स का हमारा गोल था 400 डिजाइन के बैंगल्स रखना है, वो सब करना है. इन टर्म्स ऑफ केजीज इट बिकम्स अ लॉट. सो दैट्स व्हेन वी कॉल ऑल आवर सप्लायर्स एंड बी लाइक भैया हम लोग ना मिनिमम आपसे 20% माल ले लेंगे, आप कितना भी हम लोग को भेज दो. सो दे सेंड ऑन अप्रूवल बिल के साथ भेजते हैं कि 10 kg माल भेज दिया. तो 2 kg मेरे को गारंटी सेल हुआ नहीं हुआ, मेरे को उसे खरीद के रखना है. तो आई हैव टू गिव हिम मिनिमम गारंटी कि मैं इतना आपका बेचूंगा, इतना मैं खरीदूंगा. तो वो भेज देता है मेरे को. एंड देन मेरा वो प्रमोशन हो गया, मेला हो गया, उसके बाद आई सेंड बैक द आइटम्स टू हिम. बट ऐसे भी होता है नॉर्मल डे इफ नथिंग इज गोइंग ऑन, द ज्वेलरी दैट इज पुट इन अ स्टोर इज द ज्वेलर्स स्टॉक. अंडरस्टूड. सो आई वाज थिंकिंग एंड ऑफ द डे यू वर सेइंग कि भाई इतना डिमांड भी नहीं है, सम पीपल डोंट बाय. सो व्हाई इजंट देयर समथिंग लाइक दिस वेयर अ प्लेटफॉर्म वेयर जैसे if I am also a retailer, you are also a retailer, we just put all of this content online or some system where मेरा माल भी आप बेच सको, आपका माल भी मैं बेच सकूं, and you know the inventory turnaround is faster. So this happens with the manufacturers and online. So many manufacturers have a website, so in which they just put all their products online and they directly sell to customer, to retailers or whatever. But how you are saying like a mixed, you're talking say like a जिसमें it's a app like a Zepto जिसके अंदर all the retailers का item दिख रहा है and customer can buy whatever मतलब I can also buy or basically क्या inventory if you want to correct, remove the inventory can something be done in this? The thought is there good, but इसमें जैसे होता है ना every jeweler has different rules. तो इसमें rules and buyback का consideration हो गया ना. तो देखो अभी जैसे अगर आप what you're thinking is you're thinking about say a t-shirt or a chips, वो उसमें कुछ difference नहीं है, खोल के consume करके खत्म करना. ये long term product है, इसका buyback रहना चाहिए, इसका service, इसका repair, everything is there. So the company website is more working than a platform website like Amazon or something. Amazon पे लोग gold coin खरीद लेंगे, non precious jewelry खरीद लेंगे, like a low range jewelry which is under 30,000. But buying a bigger jewelry set on there will not be possible. And reordering that, जैसे मैं आपको बोला इसका standardization भी नहीं होता है. तो right now हर पीस अलग अलग है. No, हर पीस अलग अलग नहीं, it's hand work ना. तो जैसे there is good website like Candier and also Carrot Lane, they have standardized. अगर उनको वो same chain बनाना है 2 ग्राम में 1000 बार, 2 ग्राम एग्जैक्ट में 1000 बार बनेगा वो चेन, क्योंकि वो मशीन मेड है. बट अभी जैसे मोस्ट ऑफ द फैमिली ज्वेलर्स व्हाट वी रन इज विद हैंडमेड प्रोडक्ट्स. अगर वो 100 बार बनाएंगे 10 ग्राम ऊपर नीचे आराम से होगा, क्योंकि हाथ का काम है वो, उसको उतना परफेक्ट करना होता नहीं. फिर आप आर्टिस्टिक चीजें थोड़े छीन ले रहे हो. तो विच इज वाई वो वेबसाइट पे डाल के कैटलॉग करके मल्टीपल ऑर्डर्स आ गया तो इट्स नॉट पॉसिबल अगेन. तो कंस्ट्रेंट्स है, मे बी इट विल गेट सॉल्व बाय द इंडस्ट्री और बाय पीपल आर इनोवेटिंग इन दिस वे इन द इयर्स टू कम. बट करेंटली that is a constraint and that's why company website works based on the company policies and rules, not a collaboration platform. Understood. मेरा फाइनल ये चीज़ था कि let's say if a jeweler has to shut store, तो क्या है थोड़ा ज्वेलर कैसा बोलता मेरे पास इतने करोड़ का माल है, इतना इन्वेंट्री है, इतना ये है. बट आई आस्क देम कि भाई इसका टर्न अराउंड कितना है, मतलब जो पीस आज मेरे स्टोर में है कितने साल से उधर ही पड़ा है. सो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इसकी काफ़ी सारा माल अप टू 80% या जो भी है इन सम कैटेगरीज उधर ही पड़ा है वैसे. Yeah, correct. So this is because most jewelers don't maintain a IMS, which is the inventory management system. तो we maintain a proper IMS जहाँ पे हम लोग weekly, monthly वो सब रखते हो, and then the store is as successful as how much fresh stock you keep. अभी आपका old stock या तो आप गलाओ या supplier को वापस return करो, anything करो, but you need to maintain a healthy IMS. अभी customer क्या demand कर रहा है, you have to maintain fresh stocks in that. क्योंकि अगर आपका जैसे दर्शन इज कमिंग टू माई स्टोर, अगर वो हर महीने आ रहा है सेम चीज देख रहा है तो वो आना ही बंद करेगा. ही स्टार्ट गोइंग टू अदर स्टोर. ही हैज टू सी फ्रेश न्यू स्टॉक एवरी टाइम एंड उसके लिए आईएमएस मेंटेन करना है. आईएमएस कैन बी मेंटेन ऑन अ सिंपल एक्सेल जहाँ पे आप देख कौन सा स्टॉक कितने टाइम से मेरे इन्वेंटरी में कौन सा स्टॉक. देखो आईएमएस पे तो मेंटेन हो रहा है कि नेकलेसेस कितने, ये कितने, वो कितने, टॉप्स हर एक कैटेगरी कितना है. फिर स्टॉक एज इज व्हाट यू आर सेइंग कि कितना पुराना स्टॉक मेरे पास है. आप एक चीज डिसाइड कर लो, 3 months ले लो, 1 year ले लो, 5 years ले लो, कि उससे पुराना स्टॉक मेरे स्टोर में नहीं रहना चाहिए. तो कौन से भी स्टॉक का एज अगर हो जाता है 3 साल होते ही उसको रिटर्न मेल्ट कुछ ना कुछ करना है डिसीजन उसके ऊपर. तो इज द ओनर हु हैज टू डिसाइड कि व्हाट इज द स्टॉक एज आई कैन बेयर एट माय स्टोर. बट यू आर सजेस्टिंग दैट जितना नया स्टॉक है उतना
बेटर है पुराना स्टॉक. स्टॉक. People also like that, and आपको IMS is the crux of every business. Let it be a Walmart, let it be anything. आपका इन्वेंट्री कितना जल्दी टर्न अराउंड होएगा, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ इन्वेंट्री कैन डू. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, अभी जैसे तो हाईएस्ट टर्न अराउंड होता है इन्वेंट्री का, इट इज बाय दिस चेन इन महाराष्ट्र. यार वो प्योर गोल्ड ही बेचता है, उसके टर्न्स 7 टर्न्स है. ओके, एंड देन अ तनिष्क व्हिच इज 30% डायमंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग डज अ 4.8 टर्न्स ऑफ ज्वेलरी. स्टॉक 4.8. It's a store called Thangamalai. वो एक चेन है इन तमिलनाडु. They do 7 tons of pure gold. उनका normally gold, yellow gold का ज्वेलरी मैक्सिमम. And then a Tanishq does a 4.8 tons of ज्वेलरी. मतलब स्टोर में अगर 10 kg का स्टॉक है, almost 5 times बेचता है, 4.8 times बेचता है वो complete stock. And can you guess what are the inventory turns of a family jeweler? I'm assuming it's negative only. It is उनका स्टॉक पड़ा ही पड़ा है. 0.8 मतलब ऑलमोस्ट पूरा बिकता है. वो भी ये तो एवरेज बोले ना, थोड़े का 10 होता है, थोड़े का 1 होता है, मैक्सिमम वैसे का वैसा रहता है. व्हाट यू आर सेइंग इज कंप्लीटली ट्रू. एंड देन द इफ यू कॉर्पोरेटाइज एंड पुट इन ऑल द सिस्टम्स, एंड द बिगेस्ट थिंग इज दे डोंट इवन नो. अगर आप जाके देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि कितना पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है. सो हैविंग अ IMS इज वेरी इंपॉर्टेंट. होममेड ज्वेलर्स जो भी है, सो मतलब ऐसा लगता है किसी का ज्वेलरी स्टोर है तो अरे भाई करोड़पति आदमी है, बट करोड़पति आदमी तो है बट प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है. हाँ, सो प्रॉब्ली व्हाट्स हैपनिंग इज दे मेक ओनली मनी ऑन द गोल्ड अप्रिसिएशन, बट इट्स नॉट नेसेसरीली अ मनी मेकिंग मशीन बिजनेस फॉर देम. एंड लेट्स से मेरे को पूरा खत्म हो गया भाई, मेरा ज्वेलरी स्टोर नहीं चल रहा है या जो भी, आई वांट टू सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को नहीं आना है. सो व्हाट विल लाइक अ ज्वेलर हु इज शटिंग शॉप गेट, अगर उसके पास 10 kg का माल है, मतलब how can you shut shop? मतलब अगर कल को आपको बंद करना है दुकान तो कैसे करना है? I've never seen anyone shut shop until and unless they are in loss. If someone sees their business going down or they feel they cannot continue, like how you're saying कि the next generation doesn't want to come in. इसमें बहुत smart ways है करने के, but I hope people take this decision and do it also because see देखो some people who want to come in the business, if they come and do, they'll have fun and they'll enjoy and they'll grow the business. If they don't want to do, आप force करोगे कि ये है करोगे, it's no point. जैसे अभी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, मैं तो बोलता हूँ पूरा स्टॉक बेच के आप मार्केट में भी डाल सकते हो, FD में डाल सकते हो. अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम बाय द बैंक्स इन विच यू कैन डिपॉजिट द गोल्ड विद द गवर्नमेंट. गोल्ड आप कभी भी ले सकते हो, मिनिमम लॉक इन होता है 5-6 years का, तो वो गोल्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब पूरा मेल्ट करके गोल्ड में ले लेगा. तो whoever wants to shut stop पूरा गोल्ड पिघला दो, इस पूरा गोल्ड पिघला के गवर्नमेंट के बैंक में डाल. गवर्नमेंट बैंक नहीं, एनी बैंक यू कैन गो, HDFC बैंक, एवरीथिंग, दे विल गिव यू अ 2.5% इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड वैल्यू ऑन दैट, एंड दैट विल प्रॉब्ली बी, एज आई टोल्ड यू, ज्वेलर मेक्स अ मार्जिन ऑफ 2 to 4%. तो अगर वो कमा रहा है 2 to 4%, आप बैठे बैठे विदाउट एनी रेंटल, विदाउट एनी एम्प्लॉइज, यू कैन अर्न द सेम थिंग विद द गवर्नमेंट चलेंगी, और आपकी पैसिव इनकम तो शॉर्ट हो गई. अभी एग्जाम्पल आप 10 kg बोले तो उसका 2% बिकम्स क्लोज टू लाइक 10 kg का आज के दिन वैल्यू 10 crores ले लो, 2%, 2.5% becomes 25 lakhs a year. You get as per today's value. And then gold appreciation also. Gold appreciation के बाद वो value बढ़ते रहता है, and plus the gold also is getting appreciated. And then for the 25 lakhs you try to do your new business, other business, whatever your family is interested in doing. But shut shop way में people try to put a sale, या तो फिर they want to run the store until पूरा stock sale हो जाएगा. That usually doesn't happen. It doesn't happen नहीं, आपका it's like slow death. नहीं बिक रहा है स्टॉक इसलिए तो पड़ा है. हाँ वही तो. एंड देन फिर उसमें फिर वो आप 5-6 साल 10 साल हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं, और पुराना स्टॉक इतना पुराना दुकान हो जाता है, पीपल स्टॉप एंटरिंग ओनली देन, एंड देन आप वो ही स्टोरी में रह गए. रादर देन दैट टेक अ 5-10% मेकिंग लॉस जो आपने पे किया है, एंड देन जस्ट पुट इट इन एनीथिंग, पुट इन योर FD, पुट इट एनीथिंग, लाइक FD आल्सो गिव्स यू अ डिसेंट रिटर्न. डन. सो आई थिंक दैट्स इट. काफी लंबा हो गया आई थिंक पॉडकास्ट, बट आई थिंक वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट different types of jewelry, क्या वे में people scam करते हैं, how you should start, how you should what like investment purpose से jewelry लेना है, diamond लेना है, कैसे क्या है. So thank you so much Devansh, it was a great conversation and hopefully we'll do another podcast on some other topic. Yes.